why we should learn Power BI. So, what all reasons should be there? Why should we learn Power BI? So, as you guys said, to upgrade your skills, right? To upgrade your skills. But what do you think? Apart from this, what all reasons would be there? इसके अलावा और क्या reasons हो सकते हैं? And what do you know about Power BI? You can unmute yourself and you can talk because this is interactive session. Okay, ये interactive session रहने वाला है तो आप जो है ना unmute करके बात कर लो. Okay. So very basic reason I know is automation and efficiency. So in the Power BI, we can get a live dashboards, live data. Okay, so I'll mark it here. So live dashboard. Okay, live data. Okay, what else? Integration with multiple data sources, maybe. Okay, multiple data sources, Visually, maybe integration. Okay, visually we can view it. Maybe the data would be visual. Maybe okay, just looking at the data, we won't be able to tell anything. But if it is visually appealing, then we can at okay. least analyze or do something. Visually story we can say. Yeah, स्टोरी टेलिंग है ना, right. स्टोरी टेलिंग बोल सकते हैं ना हम लोग कि Uh-huh. डैशबोर्ड देखो एंड देन यू कैन जस्ट टेल द स्टोरी लुकिंग आफ्टर दैट डेटा. आप स्टोरी बना सकते हो, स्टोरी बोल सकते हो, है ना, वो डैशबोर्ड देखने के बाद. सो विजुअली स्टोरी टेलिंग वी कैन से दैट. व्हाट एल्स? Maybe what we can't store in Excel, we can have it. Means the ओके, last data. गुड पॉइंट. सो we can work on huge data which is not possible in Excel. ठीक है, a valid point. What else? Okay, I'll add to this point. As you said, multiple data sources integration. Do you know how many data sources we can connect with? How many data sources we can connect with? Like Excel, then PDF, then Yeah. SQL SQL. database. Like this, how many data sources we can connect with? Not aware of exact number, but yeah, the sources you have mentioned was I. That Okay, is what I was knowing. so these are the most used sources like Excel, then CSV file, then PDF, then database. Okay, these are the commonly used files, but we can connect with 180 databases or 180 connectors, we can say. Mm. Asif sir, I had a question. Yes. Is it possible to convert a PDF into Excel or Yes, to it is convert a possible. data from PDF? Yeah. It is possible, but then it should be in a tabular format. Okay. Okay, it is possible, but it should be in tabular format. Okay. Okay. Okay, so we can connect around 180 connectors in Power BI. Okay, जैसे अपने पास Excel होता है, पावर BI का डेटाबेस होता है, फिर SQL का डेटाबेस होता है, JSON फाइल होता है, टेक्स्ट फाइल होता है, PDF फाइल होता है. ऐसे इसके अंदर मल्टीपल डेटा सोर्सेज से हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं. सो अराउंड 180 कनेक्टर्स आर देयर from which we can connect the Power BI. Okay, I'll take you to the Power BI application as well. Okay, so let me quickly open the Power BI application. So this is how the interface will look like. So let me go with blank report, and this is the Power BI application. Okay, so you will not see the tabular format kind of thing which we have in Excel.
And by the way, what is the difference between Excel dashboard and Power BI dashboard? What do you think? Difference between Excel dashboard and Power BI dashboard. What do you think, friends? Maybe it is more elaborative Power BI. Means in Excel, I think there would be some restrictions if we are doing. Mm-hmm. Okay. So in simple words, Excel dashboard is static dashboard. Okay. This is not interactive dashboard. Okay. So two Mhm. charts cannot speak with each other in Excel. Okay. When you click on any chart, the second chart will not change. Okay. But in Power BI, in Power BI, Power BI dashboard is interactive dashboard. So when you click on any chart, all other charts will get changed. So they talk with each other. Okay. So they are connected with each other. When you click on one chart, other chart details will get changed. So that is why we call it as interactive dashboard. Okay. What else? What else? Have you heard about DAX? Have you heard about DAX? No, I haven't heard. Yes, sir, I had heard, but I'm not sure what it is. And Okay. Yeah, likewise. Okay. So DAX is nothing but Excel functions. In the same way in Power BI, it is called as DAX, data analysis expression. Okay. Data analysis expression. Okay. This is as simple as our functions in Excel. Like we have functions in Excel, in the same way in Power BI also we have functions. Okay. That is called as DAX. Okay. So this is something very helpful in Power BI to work on your day-to-day activity, and it will ease your life. Okay. So after using DAX, uh, you know this will help you. DAX will helps to reduce your work, like we do in Excel. Okay. So this will reduce your you know work time. So we can say time management here. Okay. And in Excel, like we do the data cleansing activity, in the same way in Power BI also we do that. But in Power BI, once the activity is done, that is done. Okay. That is for every time. You just need to refresh the data and it will do it automatically. In Excel, you need to do every time. Like for example, you have one file, you need to open that file, you need to do some data cleansing activity like sorting the data, filtering the data, and getting some data out of it. Okay, those kind of activities. In Power BI, if you do that activity one time and save it, that will remain there as a automation, and every time you just need to save the data on a particular folder or path and just refresh the Power BI file. All those activities which you have done, that will work automatically. Okay. So this is what we can do in Power BI. Okay. What else you think, why we should learn Power BI? So there are around you know
more than 1200 functions, DAX functions. Okay. Overall level, more than 1200 functions are there in Power BI, out of which 400 would be like DAX functions, and the rest of all are M language kind of thing. So we are going to see majorly used functions out of that. Okay. Which is majorly used in that. Okay. So what do you think? Power BI is a paid thing, or it's a free kind of thing which we can work on? Like we It is have a paid Excel. tool. So We have both. We have is both there with. a okay? We have both things. Okay, and what is free and what is paid? So, Maybe connection to some software would be the paid version. Like if I want to Um, connect my Power BI to Oracle or something, then that would be a paid one. no, it's not like that. So in Power BI there is a concept which is called Power BI Desktop, then Power BI Services, then Power BI Mobile. Okay, so these kind of services are there. Okay, so we are going to focus majorly on Power BI Desktop and Power BI Services. Now this is free, this is paid. Okay, so basically I am going to tell you all the process of how Power BI Desktop works, how Power BI Services works. Okay, and why it is paid, why it is free. Okay, we'll go on that in some time. So far clear? Yes. 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 Okay. Now what we will do is we will note down here. I'll take this somewhere towards my right, and I'll take this as well here. Now what we will see, the common mistakes which we find in a data, and why data cleansing is required. So what are the common mistakes in a data which we डाउनलोड फ्रॉम द सीआरएम से जो हम लोग डेटा डाउनलोड करते हैं, या जहां से भी जो भी सोर्स से हम लोग डेटा लेते हैं, उसमें कॉमन मिस्टेक्स क्या होती है? व्हाट आर द कॉमन मिस्टेक्स ऑन विच वी नीड टू डू ऑल दिस क्लेंजिंग एक्टिविटी? ऐसी कौन सी एक्टिविटीज है या कौन से मिस्टेक्स है जिसके ऊपर हमको काम करना पड़ता है, क्लेंजिंग एक्टिविटीज करनी पड़ती है? Inconsistent data format, like dates in. So, which करेक्ट. I would just, yeah. इनकंसिस्टेंट डेटा फॉर्मेट्स, उसके अंदर क्या क्या आ सकता है? नल वैल्यूज, डुप्लीकेशंस, Duplicate. Yeah. है ना, डुप्लीकेशंस, व्हाट एल्स? Incorrect data types, maybe. स्पेशल कैरेक्टर्स, करेक्ट. डेटा टाइप्स, incorrect data types, what else? So like date formats and everything will come in this incorrect data types. Okay, now in some cases we have customer name which is in full or short. We need to separate those names. Like we have a customer name which is in full, we need a data in a separate columns, like first name, last name, middle name. So that kind of thing, or vice versa, we have a data where we have customer name in 3 columns: first name, last name, and middle name. We want a column where it will give us the full name, right? ऐसा होता है ना? Yes. When we work on data, we come across such things, right? ऐसा ऐसी चीजें आती है ना हमारे सामने कि customer names, full name,
और शॉर्ट नेम ऐसा आता है तो हमको उसको क्या करना पड़ता है, फुल नेम या शॉर्ट नेम आता है तो सेपरेट करना पड़ता है ना, Yes. एंड वाइस वर्सा। अगर शॉर्ट नेम है या फर्स्ट नेम लास्ट नेम ऐसा कुछ है, कस्टमर फर्स्ट नेम मिडल नेम लास्ट नेम ऐसा कुछ है तो उसको क्या करना पड़ता है, हमको मर्ज करना पड़ता है, कॉन्केटनेट करना पड़ता है, ज्वाइन करना पड़ता है ना। तो such kind of activities or such kind of mistakes are there in data. These are common mistakes, है ना। And in some cases we do have column mismatch as well. होता है ऐसा column mismatch। Yes, sir. और Yes. क्या होता है, एरर्स, हैश आने वाले एरर्स रहते हैं डेटा में कभी कभी, या कोई भी टाइप के एरर्स होते हैं। तो हमको क्या होता है, हैश आने का एरर लगता है ना, हम लोग एक्सेल पे काम करते हैं तो कॉलम मिसमैच में हम लोग डालेंगे यहाँ पे हैश आने, कॉलम मिसमैच की वजह से हैश आने का एरर आता है ना हमको। सो दीज काइंड ऑफ मिस्टेक्स आर देयर इन आवर डेटा। और कोई चीजें याद आ रही है आपको जो डेटा के अंदर आती है, जो मिस्टेक्स होती है, जहाँ पे हमको डेटा क्लेंजिंग एक्टिविटी के समय करना पड़ता है काम? मर्ज कॉलम्स ऐसा कुछ हो सकता है। मर्ज कॉलम्स हमने यहाँ पे मेंशन किया ना, मर्ज कॉलम्स। जैसे कस्टमर नेम फर्स्ट नेम मिडिल नेम लास्ट नेम अगर आता है तो हमको क्या करना पड़ता है, इसको मर्ज करना पड़ता है। अगर फुल नेम आता है तो इसको क्या करना पड़ता है, इसको सेपरेट करना पड़ता है। ऐसे भी एक्टिविटीज आते हैं ना हमारे पास। तो ये सारे एक्टिविटीज कहाँ पे होते हैं, आपको क्या लगता है? इन पावर BI where all these activities are done, this cleansing activities, this is done in Power Query. Power Query data cleansing activity, this is done in Power Query. Vinith, you have done Power Query as well, right? Yes, sir. तो पावर क्वेरी के अंदर जो काम होता है उसको क्या बोलते हैं? एक प्रोसेस होता है पावर क्वेरी में। डेटा मॉडलिंग बोल रहे हो आप या फिर डेटा क्लेंजिंग एक्टिविटी जो होती है ना, हाँ सर मेरे को डेटा याद नहीं आ क्लेंजिंग रहा है। एक्टिविटी पावर क्वेरी में उसको हाँ एक चीज से बोला जाता है। पावर पिवोट नहीं ना नहीं, पावर P8 नहीं, इसको सर? बोलते मेरे हैं ETL। क्या बोलते हैं? को ETL ETL process. The whole process of data cleansing activity is known as ETL process. Now what is ETL? Do you know what is ETL? ETL is extract, transform and load activity. Now how this works? Extract means you are extracting a data from some application, either from Excel, from PDF, from any kind of database. Okay, you are transforming that data, which means you are doing this cleansing activity, and after doing this you are loading the data. That is why it is called as ETL process. Is this clear? Yes, sir. Yes. Yes. Okay. Now, what we will see again here, we will see how it works in Power BI. Power BI. So basically, Power Query is something connected between two applications, like in Excel as well as in Power BI. So this is a dependent or a independent tool, Power Query, but this is integrated with Power BI and Excel. Now, what we will do is we will see a small example of Power Query. So what I'll do is here, I'll create some random data. So let me put region and sales, or we can take months
and sales. So I will take Jan to December and I'll take some random sales here. Okay, I have this data. Okay, now I want to take this data into Power Query. Okay, so when you go to Power Query, so let me go to Power Query. Okay, so I need to go to Power Query. So I will go to data, get data. Now if you see get and transform data, you have multiple options here. Okay, as we discussed, we have how many data connectors? More than 180 or 180, approximately around 180. So if you click here on get data, these are the sources which we have in Power BI as well. So if you click here from file, you will see all this: Excel workbook, TXT, XML, JSON, PDF, from folder, from SharePoint. Then these many databases are there. You can pull the data from Azure database. Okay. You can take the data from Fabrics and Power Platforms. These are the Power Platforms. Okay. From online services like SharePoint, okay, Microsoft Exchange, Dynamics 365. Then other sources are like, these are the other sources. Okay, but they have put in some commonly used data sources here, like from txt and csv, from web, from table and range. Okay, existing data connections, recent sources, from picture. Okay, from picture, like from image also you can pull the data. So we are going to pull the data from this table which we have created. So I'll click on this from table. So this will open the Power Query window. So this is the Power Query window, and the same window you will get in Power BI. So this is again a separate window of Power Query, and this is a separate window of Excel. Okay, the same way in Power BI desktop, you will find two separate things, two separate applications. One is Power Query and the other one is Excel. Okay, and this is how it will look in Power Query. The data looks like this in Power Query. Okay, now whatever we need to do, we can do it here. So for example, I want first 6 months data only. So I will go here and I will filter the data. I will filter Jan, Feb, March, April, May, and June. I'll click OK. Now it is giving us the data for Jan to June. If I click here, close and load, it will create a separate sheet and it will load the data only for that 6 months. Now, for example, your source data gets changed. Okay. Now the numbers, just remember these numbers. I'll copy these numbers and I'll paste it here. So these are the numbers of sales for these months. Okay. Now what we will do, we will change the numbers here. Now let's say the numbers are changed. Okay. I will save this file. I'll go here on this table. Now I just need to refresh this table. Just simply refresh and the numbers will get changed. So this is how, and this is how it works, and quickly it works. So the old numbers were this and these are the new numbers. Is this clear how it works? So this is Yes. something, a Yes. basic thing I have shown you. Okay, same will work in Power BI. Power BI में सेम ऐसे ही काम करेगा ETL टूल. और ETL टूल जब भी आपको कोई बोलता है ETL टूल के बारे में, so in Microsoft, which is the ETL tool? Which is the ETL tool in Microsoft? Power Query. Power Query, correct. Power Query. Okay.
So we have seen Power Query as well. Then we will see in Power BI. In Power BI, how it works. So Power BI in detail. Okay. Now what all things we do in Power BI? Power BI में हम लोग क्या क्या बना सकते हैं या क्या क्या आता है Power BI में? जैसे Power BI में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया? Power BI में क्या आता है? Power BI डेस्कटॉप आता है ना? Power BI सर्विसेज आता है. What else we have discussed? Then mobile services, है ना? Mobile services. Okay. Then they have introduced paginated view. Okay. Paginated view. Now this paginated view is nothing but a view which will give you a page kind of view. Okay. So most of the time when you go for a presentation, you have created a dashboard. Okay. But you don't have a projector there. What do? You take a printout of your presentation, right? So Yes. this paginated view will give you a proper paginated view where you can take a print of it. Okay. So this is what it is. Okay. And what all we do in Power BI, we create reports and dashboards. Now what do you think? कि reports और dashboards ये दो चीजों में क्या फर्क रहेगा? रिपोर्ट में और डैशबोर्ड में क्या फर्क है? क्या लगता है आपको? Dashboard is like summarized view. Summarized view, okay. I mention it here. Summarized view. तो रिपोर्ट क्या होता है फिर? Details रहते हैं उसमें. Okay. So reports would be like reporting in details ऐसा डालते हैं. तो ये डिटेल में नहीं रहता है क्या फिर समराइज्ड व्यू? Okay, I'll tell you. तो रिपोर्ट क्या होता है मालूम है क्या? You can create a report in multiple pages. Okay, you can create a report in multiple pages. Okay, but dashboard is something we can create in one page. So multiple charts, multiple views in one page, which will give you the overall idea of the data. जैसे हम लोग यहाँ पे देखो अभी शीट्स है ना, ये शीट में कुछ डेटा है, ये शीट में कुछ है, ये शीट में कुछ है, ये शीट में कुछ है ना. तो कई बार हम क्या करते हैं, ये शीट में हमने 2-3 चार्ट्स बना लिए, ये शीट में हमने 2 चार्ट्स बना लिए, इसमें कुछ डिटेल दे दी, उसमें कुछ डिटेल दे दी, सेपरेट डिटेल्स दी हमने, है ना. सो दैट इज समथिंग कॉल्ड एज रिपोर्ट. लेकिन डैशबोर्ड क्या होता है? एक ही सिंगल पेज के अंदर मल्टीपल जो आपने चार्ट्स बनाए ना, ऑल दोज मल्टीपल चार्ट्स विल कम इन अ सिंगल पेज. ठीक है, तो उसको हम लोग डैशबोर्ड बोलते हैं. ये क्लियर है? Yes. इट्स क्लियर. ओके, Yes. ठीक है, चलो. नाउ व्हाट वी विल सी इज वी विल सी the process of reporting, how it works at an overall level. Okay, so I'll quickly mention here as process of reporting. So basically the process of reporting starts with, कहाँ से स्टार्ट होगा? अगर कोई एक रिपोर्ट बनानी है हमको तो स्टार्ट कहाँ से होगा प्रोसेस? फ्रॉम वेयर इट विल स्टार्ट? आपको एक रिपोर्ट बनानी है डेटा से, करेक्ट. और डेटा कहाँ से मिलने वाला है? मल्टीपल सोर्सेस से, है ना. Yeah. तो मल्टीपल डेटा सोर्सेस, यहाँ से अपना प्रोसेस स्टार्ट होता है. ये डेटा हमको मिल गया. नाउ वी हैव द डेटा. नाउ व्हाट वी विल डू? विल डू द ETL प्रोसेस, राइट? Yes. Yeah. है ना, ETL प्रोसेस. सो ETL प्रोसेस कहाँ पे होता है?
Power query. पावर क्वेरी में होता है ना। उसके बाद क्या होगा, ETL होगा। ETL के बाद क्या होगा, ETL कर दिया आपने, डेटा क्लीन हो गया आपका। उसके बाद आप क्या करोगे, डेटा को एनालाइज करोगे, है ना, डेटा को एनालाइज करोगे। उसके बाद क्या करोगे, डेटा एनालाइज हो गया, फिर आपको क्या बनाना है, डैशबोर्ड बनाने के लिए क्या बनाते हैं हम लोग, चार्ट्स बनाते हैं ना। Yes. तो विजुअलाइजेशन है ना। अब विजुअलाइजेशन में क्या है, इनबिल्ड भी है एंड एक्सटर्नल भी है। देयर आर टू वेज टू यूज द चार्ट्स। जैसे अभी देखो, we will come here on the Power BI window. If you see here towards my right, these are the inbuilt charts. These are the inbuilt charts which they have. Okay, but if you think, okay, मुझे तो ये चार्ट नहीं चाहिए, इसमें ऐसा चार्ट चाहिए जो मेरे यूज का है, लेकिन ये मेरे यूज के चार्ट है ही नहीं, मुझे कुछ नया चार्ट इंट्रोड्यूस करना है, या ऐसा चार्ट चाहिए जो मुझे पर्सनलाइज्ड चाहिए। तो what you can do is you can click on this get more visuals. When you click here get more visuals, it will take you to this window, Power BI visuals. From here you can select a chart from your choice. आप आपके चॉइस से चार्ट सिलेक्ट कर सकते हो, और जो भी चार्ट आप सिलेक्ट करते हो you can import that chart. For example, this chart is not there, you want to pick this chart, but before picking it up you need to check whether this chart is free or chargeable. ठीक है, ये भी देखना पड़ेगा आपको, है ना। जैसे आप यहाँ पे देखोगे ना, तो आपको फिल्टर बाय दिया हुआ है, आपको क्या करना है, आपको कंपैरिजन करना है, आपको डिस्ट्रीब्यूशन करना है, फिल्टर करना है, फ्लो बनाना है, जो भी आपको इसके अंदर चाहिए। जैसे अभी हम लोग कंपैरिजन लेते हैं, ठीक है, तो ये कंपैरिजन लेने के बाद हमको ये इतने चार्ट्स बता रहे हैं। सो देयर आर दीज मेनी एडिशनल चार्ट्स इन पावर BI विजुअल्स which you can take, but you need to decide which chart you want, whether that chart is free or paid. How you will get to know, आपको कैसे पता चलेगा। जैसे हमको ये चार्ट चाहिए फॉर एग्जांपल, आप क्लिक करोगे, it will load a screen and it will show you whether this chart is free or payable. So if you see here towards the left, the pricing is showing free. You just need to click add. When you click add, this will get added here. See, now this visual is imported. So if you see here, that visual is added here. Okay, now the same visual you can use in your dashboard. So that is why I've mentioned here as inbuilt and external. Now once you have imported the data, you have done the ETL process, you have done the data analysis, then you have created the visualizations, सब हो गया। अभी अब क्या करते हो आप, क्या करते हैं आप लोग, रिपोर्ट बनाते हैं तो सिस्टम बंद करो और घर जाओ। हाँ विनीत, रिपोर्ट बनने के बाद क्या करते हैं, रिपोर्ट बन गया उसके बाद क्या करते हैं, सिस्टम बंद करके घर जाते हैं क्या, No. क्या करेंगे, किसके लिए रिपोर्ट बना रहे हैं हम, मैनेजमेंट को रिपोर्ट भी फॉरवर्ड करना पड़ेगा। करेक्ट, शेयर करना पड़ेगा ना, शेयर करना पड़ेगा ना। देन यू नीड टू शेयर द रिपोर्ट। लेकिन ये शेयर कैसे होगा, ये शेयर कैसे होगा, ये रिपोर्ट शेयर करना है अगर किसी को तो कैसे होगा, PDF में, PDF में। ओके, यहाँ पे रोल आता है अपने पावर BI सर्विसेज का, किसका रोल आता है, Services. पावर BI सर्विसेज का रोल आता है यहाँ पे। टू शेयर एनी रिपोर्ट और डैशबोर्ड यू शुड हैव अ प्रो लाइसेंस ऑफ पावर BI सर्विसेज। ये तो फ्री में हो गया काम, ये क्या हो गया, यहाँ से यहाँ तक ये काम फ्री में हो गया।
माइक्रोसॉफ्ट ने क्या किया है, पावर बीआई डेस्कटॉप फ्री में दे दिया है, लेकिन जब आपको पावर बीआई की कोई भी रिपोर्ट शेयर करनी है आपके एंड यूजर को, इन दैट केस यू वुड रिक्वायर अ प्रो लाइसेंस। कौन सा लाइसेंस लगता है आपको? Pro license. Pro license. प्रो लाइसेंस की जरूरत पड़ती है रिपोर्ट शेयर करने के लिए, ठीक है। अच्छा, ये शेयर कैसे होता है? ये शेयर करना पड़ता है हमको पावर बीआई में से ही, पावर बीआई में से इसको क्या करना पड़ता है, शेयर करना पड़ता है। ओके, जब आप यहाँ पे जाओगे ना तो आपको यहाँ पे देखो एक ऑप्शन मिलेगा आपको रिपोर्ट शेयर करने का, पब्लिश करने का, ठीक है। अब क्योंकि हमने यहाँ पे कुछ बनाया नहीं है ना, इसके लिए यहाँ पे देखो पब्लिश का ऑप्शन क्या है, डिसेबल है, दिख रहा है यहाँ पे ऑन द राइट साइड एट द टॉप, ये Yes. पब्लिश का Yeah. ऑप्शन दिख रहा है, अभी डिसेबल्ड है। जैसे आप कुछ रिपोर्ट बनाते हो और मेरे पास अगर ये एक्सेस है तो यहाँ से मैं उसको पब्लिश कर सकता हूँ। जैसे मैं पब्लिश पे क्लिक करूंगा, ठीक है, तो ये मुझे पूछेगा कि मुझे कौन से वर्क स्पेस पे सेव करना है। क्या पूछेगा? वर्क स्पेस टू सेव द डैशबोर्ड, ठीक है। जो वर्क स्पेस में दूंगा वहां पे मैं इसको सेव कर सकता हूं, लेकिन there is one more license involved in this, okay, which is called as premium license। क्या बोलते हैं उसको? प्रीमियम लाइसेंस, ठीक है। तो ये प्रीमियम लाइसेंस क्यों लगता है आपको? वर्क स्पेस के लिए प्रीमियम लाइसेंस लगता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके कंपनी के अंदर कुछ डेटा प्रोसेसिंग हो रहा है, डेटा सेव कहाँ पे हो रहा है? शेयर पॉइंट पे हो रहा है, बराबर? शेयर पॉइंट पे Yes. हो रहा है ना? Yes. उसी तरह जब पावर बीआई का रिपोर्ट बनता है तो उसको शेयर करने के लिए, पावर बीआई रिपोर्ट को पब्लिश करने के लिए हमको एक लाइसेंस लेना पड़ता है, प्रो लाइसेंस, ठीक है। प्रो लाइसेंस लेना पड़ता है टू शेयर द रिपोर्ट, टू पब्लिश द रिपोर्ट। लेकिन जब ये पब्लिश कर रहे हैं ना हम, तो ये पब्लिश करके उसको रखेंगे कहाँ पे? शेयर पॉइंट में। जैसे जैसे अपना शेयर पॉइंट होता है ना, उसी तरह ये पावर बीआई का रिपोर्ट रखने के लिए कोई जगह चाहिए ना, उसको बोलते हैं वर्क स्पेस, उसको वर्क स्पेस बोलते हैं। और वर्क स्पेस क्या करता है? वो अपना रेंट लेता है, ठीक है। आपको आपकी रिपोर्ट मेरे वर्क स्पेस में सेव करनी है, करो, बट आई विल चार्ज यू, ठीक है। तो उसके लिए हमको लेना पड़ता है प्रीमियम लाइसेंस, ठीक है। तो ये वर्क स्पेस का जो लाइसेंस होता है इसको प्रीमियम लाइसेंस बोलते हैं। और फिर ये क्या करेगा? वर्क स्पेस का लाइसेंस जिसके पास रहेगा, प्रीमियम लाइसेंस, ही विल डिसाइड वेदर ही नीड टू give permission to save the report in his workspace or no। तो अगर आपके आपके टीम में अगर 10 अलग अलग टीम्स है, ठीक है, तो ये वर्कस्पेस का लाइसेंस जिसके पास है, दैट पर्सन विल डिसाइड which report I will give a permission to save on my workspace, ठीक है। ये क्लियर है सभी को? तो जो अपने Yes. पावर बीआई सर्विसेज जो होते हैं ना, पावर बीआई सर्विसेज, इसके अंदर सारे का सारा ज्यादा करके रोल जो है ना एडमिन का होता है, ठीक है। पावर पावर बीआई डेस्कटॉप में जो है ना, ये पूरा का पूरा रोल होता है डेवलपर का। जो रिपोर्ट बनाता है ना उसका रोल होता है उसको बस पब्लिश करना है, ठीक है। लेकिन वो पब्लिश करने के बाद वो रिपोर्ट सेव करने के लिए वर्कस्पेस में जगह देना है नहीं देना है, हु विल डिसाइड? हु विल डिसाइड दिस? ये एडमिन डिसाइड करेगा जिसके पास प्रीमियम लाइसेंस है, ठीक है, जिसके पास प्रीमियम लाइसेंस है। तो यहाँ पे लाइसेंस एक लगेगा, प्रो लाइसेंस, रिपोर्ट शेयर करने के लिए। और रिपोर्ट जहाँ पे भी रिपोर्ट सेव होनी है, जिस भी वर्क स्पेस पे रिपोर्ट सेव होनी है, उनके लिए लाइसेंस लगेगा प्रीमियम लाइसेंस। तो ये पूरा का पूरा साइकिल है अपने प्रोसेस ऑफ रिपोर्टिंग का। तो पहले डेटा आएगा, उसका ETL होगा, डेटा को एनालाइज किया जाएगा, विजुअलाइजेशन बनाए जाएंगे, डैशबोर्ड बनाया जाएगा, और उसको फिर पब्लिश किया जाएगा या शेयर किया जाएगा। कहाँ पे? पावर बीआई सर्विसेज में। उसको पब्लिश करेंगे कहाँ पे? वर्क स्पेस में, ओके। तो इस तरीके से ये पूरा पावर बीआई का रिपोर्ट चलता है, ओके। नाउ जैसे मैंने बोला कि
पावर बीआई सर्विसेज के बाद जो प्रीमियम लाइसेंस है या पावर बीआई सर्विसेज का जो लाइसेंस है अपना प्रो लाइसेंस, ठीक है, इन दिस यू कैन डिसाइड अ सिक्योरिटी लेवल्स। आप क्या डिसाइड कर सकते हो? सिक्योरिटी लेवल्स डिसाइड कर सकते हो। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय सिक्योरिटी लेवल्स? जैसे मान लो आपके पास 10 टीम है, टीम 1 to 10, तो आपको क्या लगता है टीम 1 को टीम 10 की डिटेल्स दिखनी चाहिए क्या? जैसे टीम 1 का जो मैनेजर है उसको टीम 10 की डिटेल्स दिखनी चाहिए क्या? No. नहीं दिखनी चाहिए ना। अभी जैसे नॉर्मली एक्सेल में क्या होता है, पूरा का पूरा डेटा अवेलेबल है ना। टीम 1 का मैनेजर है, उसको टीम 10 की भी डिटेल दिख रही है, टीम 9 की भी दिख रही है, टीम 5 की भी दिख रही है, किसी की भी डिटेल देख पा रहा है टीम 1 वाला, है ना। लेकिन रिस्ट्रिक्शन क्या चाहिए, सिक्योरिटी क्या चाहिए? टीम 1 में जो मैनेजर है उसको टीम 1 का ही डिटेल दिखना चाहिए, टीम 2 के मैनेजर को टीम 2 की डिटेल दिखनी चाहिए। एंड दिस इज वेयर रो लेवल सिक्योरिटी कम्स इन प्लेस, ठीक है। तो जो भी डेटा हम बना रहे हैं, हमारे पास पूरे के पूरे 10 टीम का डेटा है। मान लो 10 टीम का डेटा है, उसमें एक कॉलम का नाम है मैनेजर, मैनेजर या टीम नेम, ऐसा कोई एक कॉलम है। सो बेस्ड ऑन दैट कॉलम वी कैन डिसाइड टू whom we need to give permission to view and whom to not। तो वो कहाँ पे बनता है? रो लेवल सिक्योरिटी में। रो लेवल सिक्योरिटी में आप डिसाइड कर सकते हो, ओके पर्सन ए इज मैनेजर फॉर टीम 1, पर्सन बी इज मैनेजर फॉर टीम 2। तो आपको क्या डिसाइड करना है? टीम 1 का डेटा फिल्टर होने के बाद किसको दिखना चाहिए? सिर्फ पर्सन ए को दिखना चाहिए, पर्सन बी को नहीं दिखना चाहिए। So you can give those kind of access or those kind of controls from Power BI and Power BI services. Clear so far? Yes, sir. Yes. Okay. Yes. दूसरी चीज, अभी मैंने यहाँ पे क्या किया था, एक डेटा बनाया था, हमने यहाँ पे एक डेटा बनाया था और ये डेटा को हमने क्या किया, थोड़ी देर बाद चेंज किया, है ना। और यहाँ पे जाके हमने क्या किया, इसको रिफ्रेश किया, तो क्या हुआ, जो अपडेटेड डेटा है वो इसमें आ गया, है ना। नाउ इमेजिन यू हैव अ रिपोर्ट, you have a report of your company and you need to review that report after every 2 hours। हर 2 घंटे बाद आपको क्या करना है? रिपोर्ट को रिव्यू करना है। तो हर 2 घंटे में पावर बीआई के ऊपर काम करने वाले बंदे काम करेंगे, पब्लिश करेंगे, तब जाके मैनेजर को वो रिपोर्ट दिखेगी क्या? नहीं, रिफ्रेश करने के बाद मे बी रिफ्रेश करने का कौन करेगा? रिफ्रेश यूजर हु इज गोइंग टू यूज दैट फाइल। यूजर करेगा। ओके, तो मतलब यूजर को कहीं ना कहीं रिफ्रेश करना पड़ेगा। तो जो सोर्स के ऊपर डेटा आया है वो रिफ्रेश होगा, फिर जो डैशबोर्ड बनाया गया है उस डेटा के बेसिस पे वो रिफ्रेश होगा और फिर वो रिपोर्ट को उनको पब्लिश करना पड़ेगा, राइट। तो ऐसा नहीं है। तो पावर बीआई का, अगर आपके पास पावर बीआई का जो प्रो लाइसेंस है अगर ये रहेगा, सो यू कैन डू अ शेड्यूल रिफ्रेश। आप क्या कर सकते हो? शेड्यूल रिफ्रेश कर सकते हो आप। अब इसके अंदर क्या कर सकते हो? इंक्रीमेंटल शेड्यूल रिफ्रेश कर सकते हो आप, इंक्रीमेंटल शेड्यूल रिफ्रेश। जब मैं इंक्रीमेंटल का बोल रहा हूं तो इसका मतलब क्या है, आप कितनी बार रिफ्रेश कर सकते हो एक दिन में? क्या लगता है आपको, कुछ रिस्ट्रिक्शन रहेगा क्या कि दिन में एक ही बार रिफ्रेश करो, दिन में 2 ही बार रिफ्रेश करो, ऐसा कुछ? क्या लगता है आपको? No, we can do it multiple times as well. वी कैन क्योंकि डू इट अगर मल्टीपल टाइम्स, करेक्ट प्रो लाइसेंस ली है। करेक्ट। वी कैन नहीं, प्रो लाइसेंस है इसके लिए कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। प्रो लाइसेंस नहीं रहेगा तो आपको शेड्यूल रिफ्रेश का ये नहीं आएगा, है ना। लेकिन अगर आप प्रो लाइसेंस हो तो आप शेड्यूल रिफ्रेश कर सकते हो और कितनी बार कर सकते हो, ठीक है। अब देखो ये शेड्यूल रिफ्रेश होता क्यों है? शेड्यूल रिफ्रेश क्यों होता है? व्हाई देयर इज अ कांसेप्ट कॉल्ड शेड्यूल रिफ्रेश? तो इमेजिन So that करो आप एक person प्रोसेस can में be- है,
इमेजिन करो आप एक प्रोसेस में हो टेलीकॉम के, है ना, टेलीकॉम के प्रोसेस में हो जहाँ पे इनबाउंड और आउटबाउंड दोनों चलता है। अब आपको जो है ना हर आधे घंटे बाद की सिचुएशन जाननी है कि क्या है, तो आप हर आधे घंटे बाद MIS के बंदे को चेस करोगे क्या? हर आधे घंटे के बाद उसको बोलोगे क्या डेटा डाउनलोड करो, डेटा को प्रोसेस करो, ETL करो और फिर हमको पावर BI के अंदर डेटा डाल के दो? हर आधे घंटे को बोल सकते हो क्या? नहीं नहीं बोल सकते। नहीं बोल सकते। तो जब हम स्केड्यूल रिफ्रेश करके रखते हैं, इसका बेनिफिट क्या होता है मालूम है आपको? आपका जो भी डेटा कनेक्टेड डेटा होता है ना, जैसे मान लो आपने किसी वेब पेज को कनेक्ट करके रखा है, अब आधे घंटे बाद उस वेब पेज के ऊपर क्या हो गए, चेंजेस हो गए। ये शेड्यूल रिफ्रेश क्या करेगा, उसके शेड्यूल टाइम पे, जैसे मान लो हर आधे घंटे में आपने इसको रिफ्रेश का बोला है, वो हर आधे घंटे बाद उस डेटा को कनेक्ट करेगा, रिफ्रेश करेगा, और वो रिफ्रेश करने के बाद जो नंबर्स चेंज हो गए वो डेटा पब्लिश करेगा। ये काम करता है शेड्यूल रिफ्रेश। तो आपको या जो भी बंदा वो डैशबोर्ड में काम कर रहा है, देयर इज नो नीड टू वर्क ऑन द डैशबोर्ड ईच एंड एवरी टाइम। You need to work it one time, fix it in such a way that after refreshing the data, it should give you the right numbers. एक बार करके रखना आपका काम है। एक बार आप करके रख दोगे ना और शेड्यूल रिफ्रेश लगा के रख दोगे ना, तो हर आधे घंटे बाद वो क्या करेगा, उस वेब पेज को जाके कनेक्ट करेगा, उसमें जो भी चेंजेस दिखाई दे रहे हैं वो चेंजेस यहाँ पे इम्प्लीमेंट करके दे देगा वो। तो ये अपना रिपोर्टिंग का या डैशबोर्ड का जो है ओवरऑल लेवल पे क्या है, प्रोसेस है। ये प्रोसेस समझ में आया सभी को? Yes. Yes. ये प्रोसेस Yes. समझ में आ गया ना? ये प्रोसेस में कोई दिक्कत है? नहीं। सिंपल सा प्रोसेस है ना? Yes. डेटा Yeah. आएगा, डेटा डाउनलोड करो, उसके ऊपर डेटा क्लेंजिंग एक्टिविटी करो, डेटा क्लेंजिंग एक्टिविटी होने के बाद उसके ऊपर डेटा को एनालाइज करो, विजुअलाइजेशंस बनाओ, चार्ट्स बनाओ, ग्राफ्स बनाओ और रिपोर्ट को शेयर कर दो। सिंपल सा प्रोसेस है, ठीक है। इसमें देखो मेन काम कहाँ पे मालूम है आपका? ETL में है और विजुअलाइजेशन में। मेन काम कहाँ पे है? ETL में और विजुअलाइजेशन में। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ इसमें मेन काम है? डेटा सोर्स कनेक्ट करने का तो काम बहुत इजी है। एक बार डेटा सोर्स आपने कनेक्ट कर दिया, आपका काम हो गया। उसके बाद जो ETL का काम है ना, ये वन टाइम एक्टिविटी है भले, लेकिन ये बहुत सोच समझ के करने वाले कामों में से है, क्योंकि यहाँ पे जो आप करोगे ना वो हर बार उसको रिपीट करने वाला है। उसको क्या करेगा, हर बार रिपीट करता जाएगा वो। आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अनटिल एंड अनलेस आपका डेटा के अंदर कुछ नया अगर आता है जो आपके लॉजिक से मैच नहीं कर रहा है, तो आपको फिर वो लॉजिक्स चेंज करने पड़ेंगे, इन दैट केस एडिट करके। अदरवाइज आपको उसके अंदर कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। देयर इज नो नीड टू डू एनीथिंग इन द डैशबोर्ड। यू जस्ट नीड टू डू अ रिफ्रेश, आइदर रिफ्रेश और यू कैन schedule a refresh for that particular dashboard. क्लियर है ये सभी को? Yes. Yes. Okay. ठीक है। अच्छा, जैसे अभी देखो हमने ना एक पॉइंट डिस्कस किया था डैक्स फंक्शन के बारे में, डैक्स फंक्शन के बारे में। तो जो पावर BI के अंदर जो फंक्शंस का इस्तेमाल होता है ना, उसको क्या बोलते हैं? डैक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? Tax. डैक्स बोलते हैं। उसी तरह जब आप पावर क्वेरी का इस्तेमाल करते हो ना, तो पावर क्वेरी के अंदर भी फंक्शंस लिखे जाते हैं। पावर क्वेरी में भी क्या लिखे जाते हैं? फंक्शंस लिखे जाते हैं। उसको कौन सा लैंग्वेज बोलते हैं? M language. M लैंग्वेज बोलते हैं, करेक्ट। उसको M लैंग्वेज बोला जाता है। और जो पावर BI के अंदर जो फॉर्मूलाज फंक्शंस का इस्तेमाल होता है उसको क्या बोलते हैं? डैक्स बोलते हैं। ये क्लियर है सभी को? Yes. तो जब हम डैक्स की बात कर रहे हैं, तो ऐसे कौन से डैक्स है जो कॉमनली यूज डैक्स है? ऐसे कौन से कॉमनली यूज डैक्स है? विनीत, पता है आपको? No, sir. ओके। तो देखो जो कॉमनली यूज जो डैक्स है ना, वो है कैलेंडर, ओके। उसके बाद कैलकुलेट, उसके बाद स्विच, फॉर्मेट,
Okay, then filter all, count rows. Okay, ये जो है ना, ये कॉमनली यूज होने वाले टैग्स फंक्शंस है, और ऐसे बहुत सारे फंक्शंस है, जैसे all except. ओके, उसके बाद डेट डिफरेंस. ठीक है, तो ऐसे कुछ कॉमनली यूज्ड टैग्स है जो रेगुलरली यूज होते ही होते हैं. ठीक है, तो हम लोग ये भी सीखने वाले हैं, प्लस ऐसे और बहुत सारे टैग्स फंक्शन हम लोग सीखने वाले हैं. सर ये तो सारे एक्सेल के फंक्शंस लग रहे हैं. हाँ, तो मैंने पहले आपको क्या बताया एकदम स्टार्टिंग में, ये जो पावर बीआई के जो फंक्शन है ना, इसको नाम दिया गया टैग्स है. ठीक है, ओके लेकिन इसके अंदर और एक्सेल के अंदर ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है. ओके ये बिल्कुल अपने एक्सेल के फंक्शन के जैसा काम करते हैं. अभी कुछ फंक्शन आप देखोगे ना, तो ये एक्सेल के जैसे ही फंक्शन है. जब आप यहाँ पे डालते हो ना, अभी देखो, जब आप यहाँ पे डालोगे एक्सेल फॉर्मेट, तो यहाँ पे फॉर्मेट का आपको फंक्शन मिल रहा है क्या? ये देखो, ये फॉर्मेट है, लेकिन ये फॉर्मेट आप एक्सेल में डालोगे तो मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा है. नहीं नहीं तो एक्सेल का जो टेक्स्ट फंक्शन है ना, टेक्स्ट फंक्शन, ये टेक्स्ट फंक्शन क्या काम करता है? आप किसी भी वैल्यू को ले लो और उसका क्या फॉर्मेट आपको रखना है वो डिसाइड करो, है ना. यस सर. तो इसमें एक्सेल में उसका नाम है टेक्स्ट फंक्शन, यहाँ पे उसका फॉर्मेट फंक्शन नाम है. ओके ओके ठीक है, ऐसे ही डिफरेंसेस है, दूसरा कुछ नहीं. जैसे हम लोग एक्सेल के अंदर इफ स्टेटमेंट डालते हैं, है ना. इफ लॉजिकल टेस्ट देते हैं, ट्रू रहेगा तो क्या होना चाहिए, फॉल्स रहेगा तो क्या होना चाहिए. इसके अंदर टैग्स के अंदर क्या है, स्विच नाम दिया है उसको. क्या दिया है? स्विच. स्विच. तो यहाँ पे जब आप देखोगे ना, तो आपको यहाँ पे भी देखो स्विच का फंक्शन मिलता है. तो यहाँ पे देखो एक्सप्रेशन वैल्यू 1 रिजल्ट क्या होना चाहिए, ओके वैल्यू 2 रिजल्ट क्या होना चाहिए, वैल्यू 3 रिजल्ट क्या होना चाहिए. तो इफ के अंदर भी क्या है, इफ फंक्शन में लॉजिकल टेस्ट दो, अगर ट्रू रहेगा वैल्यू तो क्या होना चाहिए, फॉल्स रहेगा वैल्यू तो क्या होना चाहिए, है ना. यस सर. तो जैसे यहाँ पे वो काम करता है, वैसे ही वो वहां पे भी काम करता है. लेकिन इफ में और स्विच में क्या फर्क है एक्सेल में? अब देखो, एक्सेल के अंदर जब हम लोग काम करते हैं ना, तो एक्सेल के अंदर इफ फंक्शन का इस्तेमाल ज्यादा होता है. और एक्सेल के अंदर जो इफ स्टेटमेंट हम लोग इस्तेमाल करते हैं, और जो नेस्टिंग करते हैं ना, हम नेस्टेड इफ करते हैं ना हम एक्सेल में, यस तो वो नेस्टेड इफ ना करना पड़े इसीलिए स्विच फंक्शन को इंट्रोड्यूस किया गया है. ओके क्योंकि यहाँ पे कैसा ऑप्शन है, आपको लॉजिकल टेस्ट देना पड़ेगा, वैल्यू इफ ट्रू क्या है वो बताना पड़ेगा. अगर वो ट्रू नहीं होता है तो फॉल्स, अगर होता है फिर से आपको इफ डालना पड़ेगा, फिर फॉल्स होता है फिर से आपको इफ डालना पड़ेगा, है ना. यस तो स्विच फंक्शन आपको क्या क्या फिजिबिलिटी देता है? स्विच फंक्शन आपको फिजिबिलिटी देता है, आपको एक्सप्रेशन देना पड़ेगा, वैल्यू 1 क्या है तो रिजल्ट क्या आना चाहिए, उसी तरह वैल्यू 2 क्या है तो रिजल्ट क्या आना चाहिए, वैल्यू 3 क्या है तो रिजल्ट क्या आना चाहिए, इस तरीके से. तो सिमिलर है, खाली फंक्शन के नाम कुछ अलग है इसके अंदर और उसके अंदर कुछ हद तक, लेकिन उसका जो काम है वो सब में काम सेम ही है. ओके. क्लियर है ये सभी को? यस सर. ओके. Yes. तो बस अपना ये रहेगा कोर्स कंटेंट. क्या हम लोग इसके अंदर बहुत सारे डैश फंक्शन सीखने वाले हैं. ईटीएल प्रोसेस हम लोग देखो, पावर बीआई डेस्कटॉप के अंदर जो है ना, मेजरली फोकस होने वाला है पावर बीआई पे, मतलब डैक्स पे. ठीक है, जिसके अंदर ईटीएल भी कवर होगा. लेकिन पावर क्वेरी का जो कोर्स है ना, जिसके अंदर कोर ईटीएल के ऊपर फोकस किया गया है, जिसके अंदर कोर ईटीएल के ऊपर फोकस किया गया है. पावर बीआई में कोर पावर बीआई के ऊपर फोकस किया गया है. ठीक है, तो बस यही डिफरेंस है पावर बीआई और पावर क्वेरी के दोनों कोर्स कंटेंट के अंदर. ये क्लियर है सभी को? यस सर. Yes. अभी हम लोग फिर आगे बढ़े क्या? यस. चलो, तो आगे हम लोग देखते हैं कि अपना क्लास कब रहेगा, क्या है, इसकी डिटेल्स देख लेते हैं. तो अपना ये जो कोर्स है ना, ये कैसा है, ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड में चलने वाला है. कैसे चलेगा? ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड में चलेगा. अपना बैच कोड है AABI 002. अब ये स्टार्ट कब से होने वाला है? ये स्टार्ट होने वाला है नेक्स्ट वीक से. तो ये 17 तारीख से स्टार्ट हो रहा है, 17 जैन से. ये एवरी सैटरडे रहने वाला है. कैसे रहने वाला है? एवरी सैटरडे वाला बैच है. और इसका टाइमिंग क्या रहेगा? 11:30 से लेके तो 2:30 तक.
तो कितना घंटा हो गया? 11:30 Yes. 12:30 1.5 और 2.5 3 घंटे का ये कोर्स रहने वाला है। इसका अप्रोक्सीमेटली जो ड्यूरेशन है ना, ये 5 मंथ्स है, ठीक है। लेकिन जब हम लोग 5 मंथ्स बोलते हैं ना, तो इसका 1 महीना आगे पीछे पकड़ के चलना है, ठीक है। 1-1.5 महीना जो है ना, आगे पीछे पकड़ के चलना है। क्यों? रीजन ये है ना, जैसे अपने हॉलीडेज कंसिडरेशन होता है। दूसरी बात क्या है, अपना जो कोर्स है ना, ये प्रैक्टिकल कोर्स है। कैसा है? प्रैक्टिकल जैसे हम लोग सीखेंगे तो आप लोग भी वहां पे क्या करोगे, इमीडिएटली ट्राई करोगे, ठीक है, और फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो अपना कोर्स ऐसा होने वाला है, ठीक है। तो इसीलिए ये कोर्स जो है ना, इसको हम 5 महीने का इसके लिए बताते हैं क्योंकि दिस इज टोटली बेस्ड ऑन द फीस। ओके, जैसे फीस हमारा 16,000 हमारा ये कोर्स का फीस है, उसको हमने डिवाइड कर दिया है, ठीक है। उसको हमने डिवाइड कर दिया 5 महीनों में, ठीक है। ऐसा उसका हिसाब है। तो हम लोग 5 महीना पकड़ते हैं इसको। लेकिन ये कोर्स जो है ना, आगे पीछे हो जाता है, कभी कभी 1-1.5 महीना 1.5 महीना आगे पीछे हो जाता है, क्योंकि अपने को जितना कवर करना है वो सारा का सारा कवर करते ही है हम लोग। और ये सिलेबस बेस्ड कंप्लीशन नहीं करते। जैसे मान लो हम लोग अगर 5 बोल रहे हैं और मुझे अगर मान लो 100 एग्जाम्पल कवर करने हैं, तो मैं हर हफ्ते में इतने एग्जाम्पल कवर करूंगा और मेरा सिलेबस खत्म करूंगा। ऐसे कोर्स नहीं चलता है अपने यहाँ पे। अपने यहाँ पे जो कोर्स चलता है ये कैसे है, कंप्लीशन, पूरा कोर्स सिखाना चाहिए, उस हिसाब से चलता है। जैसे प्रैक्टिस के अंदर अगर आपको टाइम लग रहा है थोड़ा ज्यादा, ठीक है, तो हम लोग हर एक बंदे का प्रैक्टिस होने तक वेट करते हैं। जैसे विनीत को पता है ना, विनीत, Yes, sir. हाँ, तो जब तक सबका एग्जाम्पल ट्राई करके होता नहीं है ना, तो हम लोग आगे बढ़ते नहीं है। ओके, तो इसके लिए मैंने अप्रोक्सीमेटली डाला है, तो थोड़ा बहुत आगे पीछे पकड़ के चलना। ओके, अच्छा, बाद में हम लोग फीस की डिटेल देख लेते हैं। ये कोर्स का फीस कितना है? 16,000 है। 16,000 अगर आप सिंगल पेमेंट करोगे ना, तो 10% डिस्काउंट मिलेगा। और अगर आप इंस्टॉलमेंट में लेना चाहते हो तो आपको क्या है, 4 इंस्टॉलमेंट मिलेंगे, तो 4,000 ईच। तो पहला इंस्टॉलमेंट, अच्छा, ये सिंगल पेमेंट जो है ना 14,400 10% डिस्काउंट के बाद वाला, ये आपको कभी ऑन और बिफोर 17 जैन करना है, ठीक है। तो ये डिस्काउंट एप्लीकेबल रहेगा। अगर आप 17 के बाद करोगे तो डिस्काउंट नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। अच्छा, आप इंस्टॉलमेंट में अगर पे करना चाहते हो तो ऑन और बिफोर 17 जैन आपको पहला इंस्टॉलमेंट देना है 4,000 का। और रिमेनिंग 3 इंस्टॉलमेंट जो है ना, आपको हर महीने के 10 तारीख या 10 तारीख के पहले देने हैं। जैसे अभी आपने पहला इंस्टॉलमेंट दे दिया 17 या 17 के पहले, तो आपका दूसरा इंस्टॉलमेंट 10 फरवरी को रहेगा, 10 फेब। आज 10 तारीख है ना, तो 1 महीने बाद 10 फेब या 10 फेब के पहले आपको दूसरा इंस्टॉलमेंट देना है। फिर 10 मार्च या उसके पहले तीसरा, और 10 अप्रैल या उसके पहले चौथा। ऐसे 4 इंस्टॉलमेंट आपको पे करने हैं, ठीक है। ओके, ये फीस जो है ये कैसी है, नॉन रिफंडेबल है। उसके बाद ये जो ट्रांसफर चार्जेस जो दिए है ना, तो अभी होता क्या है, जैसे मान लो आपने कोर्स ज्वाइन किया और फॉर सम रीजन आप कोर्स अटेंड नहीं कर पा रहे हो। आप चाहते हो कि आप अगले जो बैच स्टार्ट होगी उसके अंदर आपको एनरोल करना है, ठीक है। तो इन दैट केस जो अपने ट्रांसफर चार्जेस आपको अप्लाई होंगे, ठीक है। ट्रांसफर चार्जेस अप्लाई होंगे वो केस में। तो ये बस फीस डिटेल्स है। अभी देखो हमने क्या किया है मालूम है क्या, हमने अपनी वेबसाइट जो है ना, इसको हमने इंटीग्रेट किया, चेंज किया, नए वेब पेज के ऊपर माइग्रेशन किया हमने। तो मैं क्विकली क्या करता हूँ आपको, है ना, हमारा जो नया वेबसाइट है ना वो बता देता हूँ, और उसके बाद फिर हम लोग पेमेंट मोड के ऊपर आएंगे। ओके, पेमेंट मोड के ऊपर आएंगे। तो लेट मी क्विकली शो यू द वेबसाइट। तो आपको क्या करना है, आपने एनरोल यहाँ ही से किया था ना, ऑनलाइन जाकर। Yes. Yes. तो जब आपने फर्स्ट टाइम लॉगिन पे क्लिक किया तो आपको एक एनरोलमेंट फॉर्म आया होगा। आपने जहाँ पे अपना जेंडर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम वो डाल दिया, जीमेल आईडी आपका आपने सिलेक्ट किया, तो वो सारी चीजें, मोबाइल नंबर एंटर कर दिया, वो किया था आपने, है ना। तो फिर लॉगिन हुआ था। फिर आप यहाँ पे स्केड्यूल में गए थे और स्केड्यूल में जाके आपने यहाँ पे एनरोल किया था। जैसे अभी मैं एनरोल करता हूँ अपने आप को, जैसे ये इस पे मैं करता हूँ क्लिक टू एनरोल, तो ऐसा एनरोलमेंट का आपको ये आया था। तो देखो इसमें ना 2 चीजें है, कॉर्पोरेट और इंडिविजुअल। अगर आपने इंडिविजुअल सिलेक्ट किया, इसका मतलब क्या है, आपको क्या है, ये फीस जो है ये क्या है,
फीस इंक्लूडिंग जीएसटी, पे फीस ओनली। तो आपको सिर्फ फीस पे करनी पड़ेगी। जैसे मान लो आप वन टाइम पे कर रहे हो तो आपको आफ्टर डिस्काउंट 14,400, कितना आ रहा है आफ्टर डिस्काउंट? 14,400। ये जो फीस आ रहा है ना, इतना पे करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर आपने कॉर्पोरेट सिलेक्ट किया तो आपको क्या करना पड़ेगा? फीस एक्सक्लूडिंग जीएसटी। ये फीस कैसा रहेगा? एक्सक्लूडिंग जीएसटी। यू नीड टू पे द फीस प्लस जीएसटी। अच्छा, ये किसके लिए है कॉर्पोरेट सिलेक्ट करना? कॉर्पोरेट वो लोग सिलेक्ट करेंगे जो लोगों को कंपनी से रिएम्बर्समेंट लेना है। ओनली इन दैट केस यू विल सिलेक्ट कॉर्पोरेट। ये क्लियर है सभी को? अच्छा, Yes. अभी आपने क्या Yes. किया? जब आपने एनरोल किया तब आपने इंडिविजुअल कर दिया था और आपने इंस्टॉलमेंट कर दिया था विदाउट डिस्काउंट, ठीक है। अब आपने ऐसा एनरोल किया था तो आपको ऐसा बता रहा था, यहाँ पे एक बॉक्स में बता रहा होगा कि एनरोल्ड एज इंडिविजुअल इंस्टॉलमेंट। तो नेट पेएबल इंस्टॉलमेंट कितना है? 4,000 है। इन केस यू वांट टू सी अदर ऑप्शंस, कैंसिल एनरोलमेंट एंड ट्राई अगेन विथ न्यू ऑप्शंस। तो यहाँ पे देखो हम लोगों ने मेंशन किया है। जैसे मान लो अब आपको रियलाइज हो रहा है कि अरे नहीं, इसके ऊपर तो 10% डिस्काउंट मिल रहा है, मुझे ये जो है इंस्टॉलमेंट नहीं करना है, वन टाइम करना है। आप क्या करो, यहाँ पे जाओ, कैंसिल एनरोलमेंट करो और बाहर आ जाओ और फिर से जाके क्लिक टू एनरोल करो। यहाँ पे आके इंडिविजुअल और इंस्टॉलमेंट की जगह पे आप फुल टाइम सिलेक्ट करो, ये फुल अमाउंट सिलेक्ट करो और फिर एनरोल करो। तो जब आप ऐसे एनरोल करोगे ना तो आपको देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे देखो कैसे आ गया, ये 16,000 आ गया। अब मेरे यहाँ पे देखो ये 8,000 इसके लिए बता रहा है क्योंकि ये हमारे डमी डेटा के अंदर जो डाला हुआ है ना पावर बीआई का बैच का मेरा, उसकी वजह से मुझे 50% डिस्काउंट बता रहा है। जैसे आप एक्स स्टूडेंट हो, आपने इसके पहले पावर बीआई का कोर्स किया है, ठीक है, तो आपको क्या होगा? 50% डिस्काउंट अप्लाई होगा और आपको सिर्फ 50% पैसे पे करने इन दैट केस। अभी आप करके देखोगे ना तो आपको यहाँ पे 8,000 नहीं बताएगा, 14,400 बताएगा, ठीक है, नेट पेएबल में। तो इस तरीके से आप यहाँ पे एनरोलमेंट कर सकते हो। और ये एनरोलमेंट करने के बाद अब देखो मैं और एक चीज बता रहा हूँ, अगर आप कॉर्पोरेट सिलेक्ट करोगे ना, कॉर्पोरेट, तो कॉर्पोरेट के केस में आप इंस्टॉलमेंट नहीं ले सकते हो। कॉर्पोरेट के केस में आप इंस्टॉलमेंट नहीं ले सकते, आपको फुल पेमेंट करना है, ठीक है। अच्छा, ये कॉर्पोरेट के लिए डिस्काउंट एप्लीकेबल तो नहीं है, लेकिन 16,000 पे आपको जीएसटी भी भरना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये जो डिस्काउंट एप्लीकेबल है ना, ये सिर्फ स्टूडेंट लोगों के लिए एप्लीकेबल है। क्योंकि आप किससे पैसा लेने वाले हो? कंपनी से पैसा लेने वाले हो, है ना। और ये कंपनीज को हमको डिस्काउंट देना नहीं है। जब आप ऐसा एनरोल करोगे ना तो यहाँ पे आपका ये अलग दिखेगा। अब देखो ये नेट पेएबल देखो मेरा चेंज हो गया, पहले 8,000 दिख रहा था ना, देखो 16,000 फीस दिख रही थी ना पहले, अभी 18,880 दिख रहा है, बिकॉज दिस इंक्लूड्स द जीएसटी अमाउंट। ये क्या करता है? जीएसटी अमाउंट इंक्लूड करता है। फिर जैसे अभी अपना डेमो हो गया, आपको फीस पे करनी है, आपको एनरोलमेंट करना है। अभी आपने यहाँ पे एनरोल किया था, अभी आपको फीस पे करनी है। तो पहले प्रोसेस क्या होता था, पहले ये जो नंबर शेयर किए ना, इसके ऊपर हम लोग पेमेंट लेते थे। जैसे यहाँ पे नंबर्स दिए पेमेंट के, ये पेमेंट के डिटेल्स दिए, इसके ऊपर हम लोग पेमेंट लेते थे और बोलते थे स्क्रीनशॉट शेयर करने के लिए। लेकिन अभी हमने क्या किया, फीस पे करने का ऑप्शन यहीं पे डाल दिया। तो आपको क्या करना है, पे फीस करना है, जो भी मोड आपको सिलेक्ट करना है वो करना है। अभी क्रेडिट कार्ड, हाल फिलहाल में क्रेडिट कार्ड जो है ना, ये अंडर कंस्ट्रक्शन है, मतलब इसके ऊपर अभी काम चल रहा है, ये काम पूरा हुआ नहीं है। जैसे मैंने बोला ना, ये नया वेब पेज है, माइग्रेट किया हम लोगों ने नया, तो इसके ऊपर अभी काम चल रहा था। आप इसके ऊपर क्लिक भी कर दोगे ना तो ऐसे बताएगा आपको। तो जस्ट इन केस अगर आपको क्रेडिट कार्ड से पे करना है तो आप क्या करो, पर्सनली मुझे पिंग करो, तो मैं आपको क्रेडिट कार्ड से पे करने का प्रोसेस सेपरेटली बता दूंगा, ठीक है। उसका जो भी प्रोसेस होता है मैं बता दूंगा। अगर आपको यूपीआई से पे करना है तो आप इस पर क्लिक करोगे ना तो ये आपको एक स्कैनर देगा और यहाँ पे इंस्ट्रक्शन भी दिया हुआ है। देखो आपको क्या करना है, इसको स्कैन करना है, पैसा पे करना है, वेरीफाई करना है कि अमाउंट एंड द नेम, अमाउंट आपने जो अमाउंट डाली है वो अमाउंट और नेम ये चेक करना है आपको। और एक बार पेमेंट हो गया आपका, ठीक है, कंप्लीट द पेमेंट, पेमेंट होने के बाद आपको क्या करना है, इस पे क्लिक करना है, आफ्टर पेमेंट क्लिक हियर। जब आप इस पे क्लिक करोगे ना तो एक्नॉलेजमेंट जाएगा, किसके पास, इंस्टीट्यूशन के पास एक एक्नॉलेजमेंट जाएगा कि आपने फीस पे कर दी है करके। तो वो वहां से अप्रूव भी कर देंगे
और फिर आपको ग्रुप में ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ये प्रोसेस है एनरोलमेंट का। ये क्लियर है? Yes, sir. ओके। Yes, sir. Yes. अब ये वेब पेज पे अगर आप देखोगे ना, तो ये ऊपर सारे टैब्स दिखाई दे रहे हैं। होम टैब के ऊपर जो है ना, होम टैब के ऊपर अबाउट एएफसी केस देखने मिलेगा। कोर्सेज के अंदर हमारे जितने भी कोर्सेज, ये सारे के सारे कोर्सेज देखने मिलेंगे। जैसे अभी हमने एक नया कोर्स इंट्रोड्यूस किया है जो कि एआई से रिलेटेड है, एक्सेल एंड वीबीए मैक्रो प्रोजेक्ट्स यूजिंग एआई। ये हमने एक नया कोर्स इंट्रोड्यूस किया है, तो आप एक बार इसका जाके देख लेना एक बार। ठीक है, उसके बाद स्केड्यूल है जहाँ पे अपकमिंग बैचेस जो भी है ना, ये यहाँ पे आपको दिखाई देने वाले हैं। यहाँ पे आपको क्या दिखाई देगा, जो अपकमिंग बैचेस है वो आपको दिखाई देने वाले हैं। उसके बाद क्वेरीज का एक है, क्वेरीज के अंदर सारे जो क्वेरीज के रिकॉर्डिंग किए है ना, क्वेरीज के वीडियो बनाए ना, वो यहाँ पे डाल के रखे हुए। मतलब ये यहाँ पे डाले नहीं है, ये यूट्यूब को लिंक करके रखा हुआ है। तो जो भी क्वेरीज हमारे यूट्यूब चैनल पे है, वो सारे के सारे क्वेरीज यहाँ पे अवेलेबल है। तो यहाँ पे आप कुछ भी सर्च करोगे, जैसे मान लो आपको यहाँ पे सर्च करना है कंडीशनल फॉर्मेटिंग या कंडीशनल नाम से कुछ सर्च करना है, तो आप सर्च करोगे तो देखो कंडीशनल नाम से ये 2 क्वेरीज ऐसे थे जिनको हम लोगों ने ये बनाया है, वीडियो बनाया है। देखो, कंडीशनल कॉन्कैट यूजिंग पावर क्वेरी, ये कैसे होता है, तो इसका वीडियो बना के यहाँ पे डाला है। हाय ठीक है, फ्रेंड्स, ये जो क्वेरी तो है इस तरीके के आपको यहाँ पे ये ये देखने ऑलरेडी हम मिलने वाले लोग हैं। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे देखोगे ना, तो हमको जो भी फीडबैक्स मिलते हैं हमारे एएफसी केस के साइट पे बोलो, जस्ट डायल पे बोलो, तो वो सारे के सारे फीडबैक्स यहाँ पे आपको देखने मिलेंगे। ठीक है, ये सारे के सारे फीडबैक्स आपको यहाँ पे देखने मिलेंगे। गैलरी में कुछ नहीं, फोटोज है, कॉन्टैक्ट के अंदर यहाँ से आप इंक्वायरी कर सकते हो, वैसा वाला है। दिस इज समथिंग मेन थिंग फॉर यू स्टूडेंट्स। ये स्टूडेंट पे आप जब जाओगे ना, तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे आप यहाँ पे आपका बैच, जैसे ये बैच नंबर दिख रहा है ना, आपका बैच नंबर दिखेगा, आप उस पर क्लिक करोगे ना, तो आपको आपका अटेंडेंस दिखाई देगा। जैसे मैं अभी इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे देखो आपको आपका अटेंडेंस परसेंटेज दिखाई देगा। ठीक है, अभी क्या होता था, हम लोग व्हाट्सएप के ऊपर अटेंडेंस लेते थे, फिर अटेंडेंस मार्क करते थे, अटेंडेंस मार्क होने के बाद नोट्स अपलोड होते थे, तो काफी परेशानी होती थी। मतलब स्टूडेंट्स हमको चेस करते थे, हम स्टूडेंट्स को चेस करते थे कि अटेंडेंस मार्क करो, अटेंडेंस मार्क नहीं होगा तभी तक नोट्स अपलोड नहीं होंगे। लेकिन अभी वो सारा झंझट खत्म कर दिया, सारी चीजें ऑनलाइन कर दी अभी। तो जैसे आप कोई कोर्स ऑप्ट इन करते हो ना, तो यहाँ पे आपको दिखेगा एक्टिव कोर्स। जैसे आपका कोर्स खत्म हो जाएगा तो आपका ऐसा लेटर ऑफ कंप्लीशन दिखेगा, यहाँ पे सर्टिफिकेट दिखेगा। आपको एक चीज याद रखनी है, आपको क्लास ज्वाइन करने के लिए आपका ये जो क्रेडिट स्कोर है ना, ये हमेशा प्लस में होना चाहिए। जब मैं बोल रहा हूँ कि ये प्लस में होना चाहिए, इसका मतलब क्या है, जो टाइम पे आपका इंस्टॉलमेंट ड्यू है, वो टाइम पे आपको इंस्टॉलमेंट भरना पड़ेगा। अगर आपने नहीं भरा है, इन दैट केस आपका ये नोट्स का एक्सेस स्टॉप हो जाएगा। आपको यहाँ से ज्वाइन करना है अभी। विनीत, आपको याद है पहले हम लोग लिंक शेयर करते थे, है ना, और लिंक से ज्वाइन करते थे ना आप लोग। Yes, अब sir. वो जो लिंक है ना, वो हम जो शेयर करेंगे या जो लिंक पे हम ज्वाइन होंगे, आपको यहाँ पे एक ज्वाइन नाउ का ऑप्शन मिलेगा। आपको लॉगिन करना पड़ेगा हर बार ये वेब पेज के ऊपर। वेब Okay. पेज के ऊपर लॉगिन करके स्टूडेंट्स में जाना पड़ेगा, उसमें जो ज्वाइन नाउ बटन दिखेगा ना आपको, उस ज्वाइन नाउ पे क्लिक करना पड़ेगा, तब आप जाके क्लास अटेंड कर सकोगे। और वो ज्वाइन नाउ का बटन कब तक एप्लीकेबल रहेगा, जब तक आपका फीस क्लियर है। जैसे आपका ड्यू फीस क्लियर नहीं हो रहा है, ऑटोमेटिकली वो ज्वाइन नाउ का बटन क्या हो जाएगा, डिसेबल हो जाएगा। तो टाइम पे फीस पे करना जरूरी है अभी। पहले क्या होता था, हम लोगों को चेस करना पड़ता था, है ना विनीत, आपने देखा है ना, Yes, sir. Yes. हम लोग चेस करते थे। जैसे भी 2 इंस्टॉलमेंट में फीस पे करनी है, दूसरा इंस्टॉलमेंट निकल गया, 4 महीने हो गए, तभी भी अभी तक कुछ लोग हैं जिन्होंने पेमेंट किया नहीं है। और हम लोगों को पसंद नहीं है ये चीज कि हम लोग पेमेंट के लिए बार बार किसी को चेस करें, है ना, Yes, sir. तो सही नहीं लगता है। तो ये सारी चीजें हमने अभी क्या कर दी, ऑटोमेट कर दी। अब ये सिस्टम डिसाइड करेगा किसको किसको ज्वाइन करने के लिए परमिशन देनी है, किसको नहीं देनी है। तो यू नीड टू मेक श्योर आपके क्रेडिट स्कोर प्लस में दिखने चाहिए। अच्छा, ये क्रेडिट स्कोर आपके हर वीक में ना माइनस 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 होते जाएंगे। जैसे अपना बैच कंप्लीट होता जाएगा ना, उस हिसाब से आपके क्रेडिट स्कोर माइनस 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 होते जाएंगे। आपको टाटा स्काई या एयरटेल के ऊपर आप रिचार्ज करते हो ना, तो वहां पे क्या होता है, डेली आप रिफ्रेश करके देखोगे तो आपकी अमाउंट कम कम होती जाती है।
है ना? तो ये उस तरीके का काम होने वाला है। जैसे आपने रिचार्ज कर दिया, आपने 4000 पहला इंस्टॉलमेंट दे दिया फॉर एग्जांपल, आपका ड्यू बचा कितना? आपका ड्यू बचा है यहाँ पे 12000, ठीक है? तो जो 4000 आपने पे किए हैं, ये क्रेडिट के अंदर 4000 दिखाई देगा। जैसे आपने एक क्लास अटेंड किया, तो ये 4000 में से वो एक क्लास को कैलकुलेट करेगा ये बैच के परसेंटेज के हिसाब से, और उसमें से उतना पैसा माइनस कर देगा। तो ये जब माइनस में चला जाएगा ना, तो समझ लेना आपका एक्सेस बंद हो गया, आपको इंस्टॉलमेंट पे करना पड़ेगा। एम आई क्लियर ऑन दिस? yes. कुछ डाउट है? Yes. दूसरी चीज, अब देखो यहाँ पे अटेंडेंस के ऊपर पहले क्या होता था विनीत, अटेंडेंस परसेंटेज कैसे आपको दिखाई देते थे क्या? No. नहीं, आपको पूछना पड़ता था कि कितना परसेंटेज हुआ है मेरा, और पहले रिस्ट्रिक्शन होता था। रिस्ट्रिक्शन क्या होता था? 90% अटेंडेंस होना चाहिए आपका, तब जाके आपको क्या मिलेगा? सर्टिफिकेट मिलेगा, ये लेटर ऑफ कंप्लीशन मिलेगा। अभी ऐसा कुछ नहीं है, आपका 90% अटेंडेंस कंप्लीट होने दो, नहीं तो मत होने दो, तो भी आपको कंप्लीशन लेटर मिलेगा। लेकिन हमने एक चीज क्या की है मालूम है क्या? लेटर ऑफ कंप्लीशन में, मतलब ये जो कंप्लीशन लेटर है ना, इसी के अंदर हमने कंपोनेंट ऐड किया है, जिसके ऊपर है ना अपना अटेंडेंस परसेंटेज दिखाई देगा। जैसे ये अटेंडेंस परसेंटेज मेरा दिख रहा है ना यहाँ पे 95%, ये आपके उस लेटर में दिखाई देगा। तो अगर आप अटेंड नहीं कर रहे हो क्लास, तो आपको एंड ऑफ द सेशन या एंड ऑफ द क्लास, पूरा जब कोर्स खत्म हो जाएगा, आपको जब कंप्लीशन लेटर लेकर कहीं पे सबमिट करने का टाइम आएगा, तो आप ऐसा बताओगे कि 50% अटेंडेंस के साथ वाला लेटर किसी को? आपको खुद को अच्छा लगेगा क्या वैसे? तो इन शॉर्ट आप कोशिश क्या करोगे कि आपका अटेंडेंस आप अच्छे से मेंटेन करो, है ना? और जैसे आप इस पे क्लिक करते हो ना, तो यहाँ पे आपको दिखाई भी देगा कौन से दिन पे आप प्रेजेंट थे, कौन से दिन पे आप एब्सेंट थे। और इसी के साइड में ना यहाँ पे ये परसेंटेज दिया हुआ है। अब आप बोलोगे कि एक दिन अटेंड किया तो 100% अटेंडेंस आ गया, लेकिन एक दिन आने के बाद ये तो 100% ही होगा, ऐसा क्यों किया है यहाँ पे? तो इसका मैं रीजन बताता हूँ। इसका मैं रीजन बताने के पहले दूसरी एक चीज देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे फी रिसीट, आपको रिसीट ऑनलाइन मिल जाएगी, आपको नोट्स इमीडिएटली अपलोड करेंगे हम लोग। अभी पहले क्या होता था, अटेंडेंस मार्क होंगे, उसके बाद नोट्स अपलोड हो गया। अभी ऐसा नहीं, एक एग्जाम्पल खत्म हो गया, नोट्स अपलोड हो जाएंगे, एक एग्जाम्पल खत्म हो गया, नोट्स अपलोड हो जाएंगे। आप रिफ्रेश करोगे, आपको देखने मिलेगा। अगर आपका फीस ड्यू है, आपका ये नोट्स का एक्सेस बंद हो जाएगा ऑटोमेटिकली। आपको ऐसे बताएगा, देखो इसमें तो बता रहा है मेरा नोट्स, देखो नोट्स आर लॉक्ड बिकॉज दिस बैच इज डिसकंटिन्यू, ठीक है? ऐसा आपको यहाँ पे ये बताएगा, या तो आपको ऐसे कुछ बताएगा। देखो कहाँ पे डाल कर रखा हुआ था मेरे, इसमें ऐसा कहीं पे डाला ही नहीं था मैंने शायद। हाँ, तो यहाँ पे देखो, आपको ये जो पहले मैंने बताया था ना, ऐसे ही कुछ दिखेगा। तो आपको नीचे यहाँ पे स्पेसिफाई करेगा वो कि ये नोट्स आपको नहीं दिख रहे करके, अगर आपका फीस पे नहीं किया है तो, ठीक है? देखो ऐसे, नोट्स आर लॉक्ड बिकॉज दिस बैच इज डिसकंटिन्यूड, ये कैसे किया है? ऐसे आपको कमेंट मिलेगा, ठीक है? तो आपको ध्यान देना है ये वाले सेशन पे, क्रेडिट हमेशा आपका प्लस में होना चाहिए, माइनस में नहीं। ओके, नोट्स आपको देखो यहाँ पे नीचे मिलने वाले हैं। नोट्स कहाँ पे मिलेंगे? यहीं पे नीचे। अच्छा, फीस रिसीट आपको यहाँ पे मिलेगा, देखो उसी के नीचे फीस रिसीट मिलेगा ये वाले सेशन में। ये देखो यहाँ पे फीस रिसीट, आप इस पर क्लिक करोगे ना, तो फीस का रिसीट भी मिल जाएगा आपको, आपने जो फीस पे की है उसका। और ये सेशन नोट्स पे आप जब यहाँ पे क्लिक करोगे ना, तो ईच एंड एवरी एग्जाम्पल ऐसे आपको दिखाई देगा। यहाँ पे आपको ईच एंड एवरी एग्जाम्पल दिखाई देगा। जो भी हम काम करेंगे वो मैं इमीडिएटली अपलोड कर दूंगा। तो अभी क्या होने वाला है, नोट्स आपको इमीडिएट मिल जाने वाले हैं। जैसा एग्जाम्पल खत्म हो जाएगा, आपको वो नोट्स मिलते जाएंगे, ठीक है? ये क्लियर है सभी को? Yes. ओके, अब देखो Yes. यहाँ पे जो है ना, ये ट्रेनर्स के लिए है, हमारे लिए है। यहाँ से अभी सेशन जो पहले गूगल मीट से स्टार्ट होता था ना, अभी यहाँ से होगा। जैसे मैं यहाँ पे जाता हूँ, पावर BI सिलेक्ट करता हूँ और स्टार्ट सेशन किया, तो हमारा क्या हो गया, सेशन स्टार्ट हो गया। क्लोज करूंगा तो सेशन एंड हो जाएगा, तो मुझे मेरे सेशन का स्टार्ट टाइम एंड टाइम पता चलेगा। इसके बेसिस पे वो मेरा ओवरऑल बैच परसेंटेज कैलकुलेट करेगा। ओके, यहाँ पे मुझे जो भी इमेज सेव करनी है, मैं स्क्रीनशॉट निकालूंगा, यहाँ पे पेस्ट करूंगा,
एंड ऑफ द डे क्या होगा, वो सारे पीडीएफ के अंदर कन्वर्ट होके एक पीडीएफ आएगा और अपलोड करके दे देगा आपको वो पेज पीडीएफ में। ओके, अब जैसे मैंने बोला कि हर एक एग्जाम्पल के बाद मैं नोट्स अपलोड करूंगा, तो मैं सिंपली क्या करूंगा, यहाँ पे जाऊंगा और नोट्स अपलोड कर दूंगा। अपलोड करके मैंने फाइल सिलेक्ट कर दिया, ओके किया, आपने आपके एंड पे रिफ्रेश किया, आपको नोट्स दिख जाएंगे। पहले ऐसा होता नहीं था, पूरा क्लास खत्म होगा, फिर अटेंडेंस मार्क होगा, फिर मैं नोट्स अपलोड करूंगा, फिर आपको नोट्स दिखेंगे, वैसा होता था। अभी वैसा नहीं है, इमीडिएट आपको नोट्स मिल जाएंगे। इसके बाद जो चीज मैं बताने जा रहा हूँ ना, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, जो मैंने यहाँ पे आपको बताया ना, अटेंडेंस परसेंटेज, यहाँ पे आपका ये दिख रहा है, यहाँ पे परसेंटेज दिख रहा है, ये परसेंटेज डिसाइड करेगा आपका ये वाला टैब, ये वाला टैब, ये जो टैब है ना, सीक रिएक्शन, ये आपका डिसाइड करेगा कि आपका अटेंडेंस कितना है। जैसे मान लो आज आप छुट्टी पे हो, 10 क्लास, टोटल 10 क्लास हम लोग कर रहे हैं, एग्जाम्पल है, टोटल 10 क्लास हम लोग कर रहे हैं, आप एक दिन नहीं आए, तो आपका कितना परसेंट अटेंडेंस हो जाएगा? 90% हो जाएगा, है ना? हाँ कि नहीं? Yes, Yes. yes. 90% हो जाएगा। मान लो आपने 10 क्लास में आपने 10 के 10 क्लास अटेंड किए, लेकिन एक क्लास जो है ना, उन 10 क्लास में से एक क्लास आपने क्या किया, पहले 1.5 घंटा आप अवेलेबल थे, बाद के 1.5 घंटा आप थे ही नहीं, तो आपका अटेंडेंस परसेंटेज कितना हो जाएगा? कितना होगा आपका? आपने 10 क्लास है, 10 क्लास अटेंड किया आपने, लेकिन एक क्लास ऐसा किया आपने जो आपने क्या किया, आधा दिन अटेंड किया और आधा दिन किया ही नहीं, तो आपका अटेंडेंस परसेंटेज हो जाएगा 95%। अब ये डिसाइड कैसे होगा? ये डिसाइड होगा इस सीक रिएक्शन से। जैसे हमारा एग्जाम्पल खत्म होता है, जैसे कोई भी चीज मैं एक्सप्लेन करता हूँ, तो मैं यहाँ पे आपको डालूंगा एग्जाम्पल नंबर 1 और सीक रिएक्शन। आप जैसे रिफ्रेश करके देखोगे ना, तो आपको यहाँ पे सीक रिएक्शन करने का ऑप्शन मिलेगा। जैसे हम लोग देखो किसी भी व्हाट्सएप के मैसेज को लाइक करते हैं, थम्स अप देते हैं, है ना, उस तरीके का रिएक्शन आपको डालना है हर एक एग्जाम्पल के बाद। तो मान लो 3 घंटे के एग्जाम्पल में, 3 घंटे के टाइम में मैंने 10 रिएक्शन डाले। आपने क्या किया, पहले 1 घंटे के 5 रिएक्शन पे आपने रिएक्शन डाला, उसके बाद आप अवेलेबल हो लेकिन आपने रिएक्शन डाला ही नहीं, उसके बाद 5 रिएक्शन के बाद आपने रिएक्शन ही नहीं डाला, तो वो 2 घंटे का जो टाइम है ना, वो कंसिडर नहीं होगा आपका। तो आपको हर एक रिएक्शन, हर एक मैसेज को रिएक्शन डालना है आपको, हर एक मैसेज को आपको रिएक्शन डालना है, जिससे आपको ये समझ में आए कि आपको समझ में आ गया है करके। ये क्लियर है सभी को? Yes, sir. Yes. Yes. तो बस यही अपना इसके बारे में, वेबसाइट के बारे में। अब जो भी अपना लॉगिन होगा इस वेबसाइट के थ्रू ही होगा। अब फिर से आते हैं अपने फीस डिटेल के पास। आपको देखो पे नाउ करने के बाद क्या क्या डिटेल्स आने वाली हो, मैंने सारी चीज़ें बता दी। ये रजा सर का, मेरा और इमरान का, हम तीनों का नंबर है। आप अगर चाहिए तो नोट डाउन करके ले लो, जस्ट इन केस आपके कुछ क्वेश्चंस है, अभी पूछना है अभी पूछ लो, या आप चाहते हो कि अभी आपको कुछ क्वेश्चंस नहीं आ रहे, बाद में आपको ऐसा लगता है कि यार ये क्वेश्चन पूछना चाहिए था, तो आप पर्सनली मुझे कॉल कर दो, व्हाट्सएप पे पिंग कर दो, तो मैं आपको आंसर कर दूंगा। ठीक है? सर नॉर्मल पेमेंट किया जीपे से तो चलेगा ना? तो ऐसा नहीं है ना कि वहाँ पे जो ये दिया स्कैनर, उससे ही पेमेंट करना है? देखो वो जो स्कैनर दिया है ना विनीत, हाँ, आप वहीं से करो अभी। क्यों मालूम है? क्योंकि आप वहां से करोगे ना, वहां से करोगे ना, तो उसके बाद है ना एक ऑप्शन, देखो मैंने आपको बताया नीचे एक बटन क्लिक करने के बारे में बताया मैंने आपको, वो बटन आपको क्लिक करना है। जब आप वो बटन क्लिक करोगे ना, तभी आपका पेमेंट इनिशिएट होगा। ओके मतलब हमको पता चलेगा कि आपने पेमेंट किया है। ओके ठीक है, लेकिन अगर आप ये गूगल पे नंबर के ऊपर अगर आप फीस पे कर रहे हो और आप स्क्रीनशॉट भेज रहे हो फॉर एग्जांपल, तो आपको क्या करना है, आपको जाके वहां पे एंटर पेमेंट डिटेल्स ऐसे करने पड़ेंगी। तो इसके लिए हम लोग क्या सजेस्ट कर रहे हैं सबको, वहीं से पेमेंट करो, ये सजेस्ट कर रहे हैं। जैसे मैं यहाँ पे जाता हूँ देखो, और एक ऑप्शन था उसके अंदर क्रेडिट कार्ड, दूसरा ऑप्शन उसके अंदर क्या था, एक ऑप्शन था क्रेडिट कार्ड, दूसरा था यूपीआई, और तीसरा था एंटर पेमेंट डिटेल। क्या था? एंटर पेमेंट डिटेल। तो आपको क्या करना है, एंटर पेमेंट डिटेल करना है। देखो एंटर पेमेंट डिटेल, आप यहाँ पे जाओ, एंटर पेमेंट डिटेल करो, जो भी अमाउंट आपने पे की है, पेमेंट का डेट डाल दो,
पेड टू, आपने किसको पे की है, ट्रेनर को की है या इंस्टीट्यूट को की है। जैसे कभी कभार क्या होता है, ऑफलाइन में आते हो आप और आप कैश पेमेंट करते हो, है ना, तो वो केस में आप क्या करोगे, एंटर पेमेंट डिटेल करोगे, ट्रेनर सिलेक्ट करोगे और पेमेंट मोड में आप या तो कैश डाल दोगे या तो ऑनलाइन डालोगे। मान लो मेरे मोबाइल नंबर पे आपने पे कर दिया, गूगल पे मेरे नंबर पे आपने पे किया, तो आप क्या करो, यहाँ पे सिलेक्शन करते समय ट्रेनर करो, अगर आपने इंस्टीट्यूट को पे किया तो इंस्टीट्यूट करो, जिनको भी आप पे करोगे आपको उनको सिलेक्ट करना है यहाँ पे। और पे मोड जो है ना, आपको कैश है या ऑनलाइन है वो सिलेक्ट करना है, और नीचे यहाँ पे पेमेंट रेफरेंस नंबर की डिटेल डालनी है। ये क्लियर है, सिंपल है। यस सर। Yes. तो आपको ध्यान देना है कि आपको पेमेंट जो करना है वो यहीं से करना है, ठीक है। ओके। ऑल राइट, तो एनी अदर क्वेश्चंस, ये नंबर नोट डाउन कर लिए क्या आप लोगों ने? एक मिनट, हाँ मैं जाता हूँ ये स्क्रीन पे फिर से, ये नंबर नोट डाउन कर लो, ये कॉन्टेक्ट डिटेल्स, या अगर आपको इसका फोटो निकालना तो फोटो ले लो, साइड में पेमेंट डिटेल्स भी रहेंगे। जिनको क्रेडिट कार्ड से पैसा पे करना है वो मुझे पर्सनली एक बार पिंग कर लो, मैं आपको प्रोसेस बता दूंगा फिर, या अगर अपना नेक्स्ट वीक के पहले अगर वो साइट अप हो जाता है ना क्रेडिट कार्ड वाला, तो आप डायरेक्टली फिर वहां से भी कर सकते हो। लेकिन अगर वो इंटीग्रेशन नहीं हुआ होगा, वो उसके ऊपर काम नहीं हुआ होगा, तो आप मुझे पिंग करना, मैं आपको बता दूंगा प्रोसेस क्या होता है, ठीक है। सर मेरे को पूछना है कि जैसे अपना एक्सेल की जो बैचेस थे, तो हर एक बैच का नेक्स्ट वीक में रिवीजन होता था, तो इसका भी होगा? इसका भी होगा, गुड क्वेश्चन, बहुत अच्छा होगा आपने क्वेश्चन पूछा। तो जैसे हम लोग क्या करते हैं, जैसे मान लो आज हम लोग अपना डे 1 है, अभी नेक्स्ट वीक में अपना डे 1 है ना, तो मान लो ऐसे पकड़ लो कि आज अपना डे 1 है, तो आज डे 1 पे हमने एग्जाम्पल नंबर 1 to 5 ऐसे हमने 5 एग्जाम्पल कवर किए, ठीक है। तो नेक्स्ट वीक जब हम लोग आएंगे ना, तो हमारा क्या काम रहेगा, नेक्स्ट वीक जब आएंगे तो हम लोग पहले रिवीजन करेंगे, रिवीजन ऑफ एग्जाम्पल नंबर 1 to 5, ये सब कोर्सेज के लिए है एप्लीकेबल विनर। तो हम लोग क्या Okay. करेंगे, 1 to 5 नंबर के एग्जाम्पल को रिवाइज करेंगे, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक ब्रेक लेंगे, और ब्रेक के बाद फिर हम लोग न्यू एग्जाम्पल स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ये जो रिवीजन वाला सिस्टम है ना, जो भी वीकेंड वाले बैचेस होते हैं ना, सब में एप्लीकेबल है, डेली वाले बैच में रिवीजन एप्लीकेबल नहीं है। क्योंकि देखो ना, आप खुद सोचो ना कि आप एक हफ्ते बाद मिल रहे हो, आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, तो पिछले हफ्ते में क्या सीखा था वो क्या होने वाला है, आप भूल जाने वाले हो, है ना। Yes. इसीलिए हम लोग वीकेंड वाले बैच पे रिवीजन रखते हैं। लेकिन डेली वाला बैच आज मॉर्निंग में 9 बजे किया था, कल वापस से 9 बजे कनेक्ट करना है, तो एक दिन पहले की बात फिर भी याद रह जाती है ना इनको हमको, लेकिन एक हफ्ता पहले की बात याद ही रखना मतलब थोड़ी सा डिफिकल्ट है। इसीलिए वीकेंड के बैचेस पे रिवीजन होता है, वीकडेज के बैच पे रिवीजन नहीं होता है। इज दिस क्लियर? Yes. Yes. ऑलराइट, सर, जो क्वेश्चन है तो मुझे पूछ लो। नेक्स्ट बैच में जो भी मॉड्यूल्स होंगे तो उसका शेड्यूल प्रायर मिल जाता है क्या? देखो एट टाइम्स क्या होता है, जैसे मैं डेटा शेयर कर रहा हूँ, तो मुझे पता है कि अभी हम लोगों ने एक डेटा के ऊपर काम करना चालू किया है, अब आने वाले 3 वीक जो रहेंगे ना, इसी डेटा पे हमको काम करना है, ठीक है। तो हम लोग डेटा जब शेयर करेंगे ना, तो वो सेम डेटा को आपको इस्तेमाल करना है। जैसे जब भी वो डेटा चेंज होने वाला रहेगा, तो मैं इमीडिएटली नोट्स अपलोड जैसे करते हैं ना, वैसे डेटा को अपलोड कर दूंगा, ठीक है। आपको वहां पे डेटा डाउनलोड करना है, आपके पास सेव करके रखना है। हाँ, नहीं, मैं पूछ रही थी कि नेक्स्ट बैच में जो भी मॉड्यूल्स होंगे। हाँ हाँ, वो आपको एडवांस में मिल जाएंगे। जैसे Okay. मुझे अगर ऐसा लगता है ना कि अभी आने वाले बैच में अपने को अपना डेटा चेंज करना है, सोर्स डेटा चेंज करना है, तो जो भी डेटा इस्तेमाल हम लोग करने वाले ना, वो डेटा को हम एडवांस के अंदर ये शेयर करके रख देते हैं, ओके, ओके। ठीक है। और अब क्योंकि ये सारी चीज़ें ऑनलाइन हुई है, अगर हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है फॉर एग्जांपल 11:30 को, हमने 11:30 को भी वो डेटा अपलोड कर दिया, तो आपको इमीडिएटली देखने को मिलने वाला है, तो उसमें ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ओके, एंड ये बैच का जो पैटर्न है ऑनलाइन एंड ऑफलाइन, सो
उसमें मतलब ये कैसे रहेगा, मतलब सारे के सारे ऑफलाइन रहेंगे या फिर इट इज ऑन द नहीं बेसिस ऑफ नहीं, रिक्वायर? जैसे अभी आप ऑनलाइन ज्वाइन कर रहे हो, यहाँ पे हम्म कुछ लोग ऑफलाइन ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है। हम्म तो हम्म जैसे मान लो यहाँ पे ऑफलाइन में अगर आपको आना है तो आप ऑफलाइन में भी आके बैठ सकते हो, आप चाहते हो कि ऑनलाइन कनेक्ट करना है तो ऑनलाइन कनेक्ट कर सकते हो, इट डिपेंड्स ऑन यू, ओके आपकी ओके फिजिबिलिटी के हिसाब से। अब आपको लगता है कि अरे ऑनलाइन जो है ये थोड़ा सा मुझे मेरा कनेक्शन का बहुत इशू है यहाँ पे, तो बार बार कनेक्शन जा रहा है और फिर मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, डिस्कनेक्ट हो रहा है बार बार, तो ठीक है, तो आप चाहते हो कि आपको ऑनलाइन आना नहीं है, ऑफलाइन आना है, तो आप ऑफलाइन आके बैठ जाओ, ओके ओके ठीक परफेक्ट। है। हाँ सेम गोज विथ ऑफलाइन स्टूडेंट्स एज वेल। आपने ऑफलाइन के लिए अगर ऑप्ट किया है, आप चाह रहे हो कि आप ट्रैवल कर रहे हो कहीं पे, या आपको आज कुछ काम है कि आप इतना दूर आ नहीं सकते, आज बारिश हो रहा है, आज धूप ज्यादा बढ़ गया है, आज ठंडी बहुत गिर गई है, तो आप नहीं आना चाहते ऑफलाइन में, ऑनलाइन करना चाहते हो, ऑनलाइन करो, ओके है ना। तो ये दोनों मोड जो है ना ओपन है सबके लिए, ऐसा कुछ रिस्ट्रिक्टेड नहीं है कि अभी आपने ऑनलाइन के अंदर ऑप्ट किया तो आप ऑफलाइन नहीं आ सकते, या ऑफलाइन को ऑप्ट किया तो ऑनलाइन नहीं आ सकते, ऐसा कुछ भी नहीं है, दैट ओके इज ओके फिजिबल, ओके। यस। एंड लास्ट क्वेश्चन इज रिगार्डिंग सर्टिफिकेशन। तो कंप्लीशन का तो मिल, हाँ यस। सर्टिफिकेशन के लिए क्या रहेगा पता है क्या? सर्टिफिकेशन के लिए वी आर गोइंग टू टेक अराउंड 30 to 40 such examples which are going to be certification based। तो सर्टिफिकेशन जो है ना, सर्टिफिकेशन आपको माइक्रोसॉफ्ट का करना पड़ता है, आपको PL300 का एग्जाम देना पड़ता है, उस एग्जाम का प्रिपरेशन हम लोग करवाते हैं। जैसे एग्जाम कैसे होता है, एग्जाम में क्या क्या आता है, मतलब क्या क्या आ सकता है, कैसे क्वेश्चंस होते हैं, आपको आंसर करने के लिए कैसे आंसर करना पड़ता है, आप पावर बीआई का ये पावर बीआई डेस्कटॉप कब इस्तेमाल कर सकते हैं, टेस्ट देते समय, एग्जाम देते समय पावर डेस्कटॉप अलाउड है या नहीं है, अगर आप टेस्ट दे रहे हो तो क्या अलाउड है क्या अलाउड नहीं है, ये सारी चीजें हम लोग शेयर करते हैं। और 30 to 40 ऐसे क्वेश्चंस है जो हम लोग शेयर करते हैं आप लोगों के साथ, जो एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है, कैसे क्वेश्चंस आते हैं वो हम आपको बताते हैं। तो PL300 एग्जाम देने के लिए जो जो रिक्वायर्ड चीजें है उसका भी प्रिपरेशन का हम लोग ये करवाते हैं सेशन, मतलब इमीडिएटली अपना कोर्स जैसे खत्म होता है ना, तो उसी के इमीडिएटली बाद PL300 के जो सर्टिफिकेशंस होते हैं, उस सर्टिफिकेशन में क्वेश्चन के टाइप कैसे होते हैं क्या होते हैं वो प्रिपरेशन वगैरह हम वो भी कवर करते हैं अपने कोर्स में। ओके, और दैट उसी के साथ सर्टिफिकेशन साथ पावर चार्ज। बीआई सर्विस नहीं, उसका कोई चार्जेस नहीं, वो अपनी ये फीस में इंक्लूडेड है। ओके ओके। सर्टिफिकेशन सर्टिफिकेशन का पैसा माइक्रोसॉफ्ट को अलग से देना पड़ेगा। लेट मी ओह, क्लियर दिस, हाँ हाँ। सर्टिफिकेशन जो होता है माइक्रोसॉफ्ट का दैट इज ऑल टुगेदर डिफरेंट, ठीक है। उसका जो हम्म भी चार्जेस रहेगा वो आप उसको ऑनलाइन पे करना पड़ेगा आपको, या अगर आपको सर से चेक करना है, अगर आपको सर्टिफिकेशन करना है तो एक बार हम्म रजा सर को पिंग कर दो, क्योंकि कई बार क्या होता है रजा सर के पास कूपन्स आते हैं, हम्म कूपन्स आते हैं सर्टिफिकेशन के, तो वो हम्म। डिस्काउंटेड रेट में मिलते हैं कूपन्स। सर उसका कितना ओके चार्ज रहता है पावर बीआई सर्टिफिकेशन पावर बीआई माइक्रोसॉफ्ट? सर्टिफिकेशन के चार्जेस जो है ना ये चेंज होते रहते हैं। तो जैसे अभी हम लोग देखेंगे ना, अभी मेरे ख्याल से रिसेंट कुछ तो 4600 या ऐसा कुछ होना चाहिए, 4500 से 5000 के आसपास होना चाहिए। अगर आप देखोगे ना पावर बीआई PL300 सर्टिफिकेट चार्जेस, सर PL300 क्या है, ये कुछ जैसा पर्टिकुलर है क्या? हाँ ये जो है ना ये अपने सर्टिफिकेशन का नाम है, ओके। ये सर्टिफिकेशन का नाम है, पावर बीआई डेटा एनालिसिस का ये सर्टिफिकेट मिलता है आपको, ऐसे देखो ये पावर बीआई डेटा एनालिस्ट एसोसिएट, ऐसा वाला आपको ये मिलता है सर्टिफिकेट इससे, ठीक है। ओके। तो जब आप इस पे जाके देखोगे ना पावर बीआई के वेबसाइट पे, माइक्रोसॉफ्ट के वेबसाइट पे, तो आपको इसका चार्जेस बताएगा ये, माइक्रोसॉफ्ट के वेबसाइट पे ही जाते हैं हम लोग, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट का जो वेबसाइट दिखेगा ना उस पे जाएंगे, देखो microsoft.com, इस पे जाते हैं, कोई दूसरे साइट पे नहीं जाते हैं। तो यहाँ पे देखो आप देखोगे ना तो प्राइसिंग, ये तो देखो ये लाइसेंस का चार्जेस बताया है, देखो जैसे मैंने बताया ना ये फ्री अकाउंट है, ये पावर बीआई प्रो लाइसेंस का कॉस्ट है, ये पर यूजर पेड ईयरली ऐसा है,
इसका आपको लाइसेंस लेना पड़ता है। देखो ये प्रीमियम लाइसेंस का है, ऐसे लाइसेंस के काफ़ी ये है। अपने को क्या देखना है, अपने को देखना है इसका कोर्स के फीस का देखना है ना। Mm-hmm. तो यहाँ पे PL 300 डालना पड़ेगा हमको। एक मिनट, पावर BI सर्टिफिकेशन कॉस्ट। आप भी एक बार सर्च करके देख लो क्या दिखा रहा है आपको, कुछ दिखा रहा है क्या? आपकी लेटेस्ट कितना दिख रहा है? यहाँ पे दिख रहा है, देखो देखो 4800 है PL 300 का कॉस्ट। मैंने बताया ना 4800 आपको, तो 4800 है। तो अगर आपने कूपन लिया, अगर कूपन अवेलेबल है अगर सर के पास, तो जैसे ये 4800 की जगह पे आपको लेट से 4200 पे करना पड़ेंगे, ऐसा कुछ। ओके ठीक है, तो Okay. ये इस तरीके के इसके अंदर चार्जेस है। शायद उसका कुछ क्राइटेरिया भी रहेगा ना, पासिंग क्राइटेरिया एंड अटेम्प्ट्स। वो सारी चीजें जो है ना, वो PL 300 के जो एग्जाम प्रिपरेशन का जो ये होगा ना, उसमें सारी चीजें डिस्कस करेंगे हम लोग कि उसका ओके पासिंग क्राइटेरिया क्या है, आपको एग्जाम कैसे अटेंड करना है, एग्जाम अटेंड करने के समय क्या क्या चीजें फॉलो होनी चाहिए, वो सारी चीजें डिस्कस करेंगे हम लोग वो वाले सेशन में। ओके ओके। एंड लास्ट क्वेश्चन, हम्म। ये क्लास के लिए हमें डेस्कटॉप वाला पावर बीआई इज ओके और प्रो लाइसेंस वाला भी चाहिए नहीं, मतलब? तो अभी आपको प्रो लाइसेंस वगैरह लेने की कुछ भी जरूरत नहीं है। मैं आपको बताऊंगा जब भी हमको जरूरत पड़ेगी ना, तो मेरे पास कुछ अकाउंट है, ठीक है, या मैं कुछ अकाउंट शेयर करूंगा आपके साथ, और फिर वो प्रो लाइसेंस का अकाउंट आप इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। या मैं ओके। आपको बताऊंगा कि क्या करना है। अब उसके पहले आप कुछ भी मत करना। जैसे ना हम लोगों को है ना पावर BI का ट्रायल लाइसेंस मिलता है, ट्रायल पीरियड मिलता है 60 डेज के लिए, हाँ। ठीक है। तो जब हमारा पावर BI सर्विसेज स्टार्ट होगा ना, तब मैं आप लोगों को बताऊंगा, तब आपको फ्री लाइसेंस जो है ना आपका ट्रायल वर्जन, वो स्टार्ट करना पड़ेगा आपको। वो स्टार्ट करोगे तो आपको सारे पावर BI सर्विसेज के जो ये है ना वो आपको यूज करने मिलेंगे। उसके पहले आप वो लाइसेंस को एक्टिवेट मत करना, ओके ठीक है। नोटेड। तो जब हम सर्विसेज चालू कर देंगे ना पावर BI सर्विसेज की टाइमिंग में, मैं आपको बताऊंगा कि अभी फ्री ट्रायल जो है ना इसको एक्टिवेट कर दो। वो आप एक्टिवेट कर दोगे तो आप फिर आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। यस। ओके, ऑल राइट। एनी अदर क्वेश्चंस? सर मेरे को मेरा कंप्लीशन सर्टिफिकेट डाउनलोड करना है फॉर पावर क्विलियन एंड एक्सेल, तो मैं मेरा स्क्रीन शेयर करूँ क्या 1-2 मिनट के लिए? अच्छा, तो विनीत ये सेशन खत्म हो जाने देते हैं, फिर मैं हाँ आपको पर्सनली एक लिंक भेजता हूँ, ठीक है। ओके और ओके उसके अंदर करते हैं, क्योंकि अभी क्या है रिकॉर्डेड सेशन है ना ओके अपना ये डेमो का, तो हम लोग उसको सेपरेटली करते हैं, ठीक है ठीक है। ठीक है। ऑल राइट। तो आई होप अभी सभी के क्वेश्चंस आंसर कर दिए मैंने। अगर किसी को कुछ भी क्वेश्चन है तो आप मुझे पर्सनली फिर कॉल कर सकते हो। आपने ये नंबर नोट डाउन कर लिए ना? Yes. अगर नहीं किए होंगे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, या नंबर इमीडिएटली नोट डाउन करना है मोबाइल में तो कर लो। 976। आप इसका फोटो ले लोगे ना तो तीनों नंबर आपके पास अवेलेबल रहेंगे। या तो अगर सर ने रिस्पॉन्ड नहीं किए कॉल को, तो आप मुझे कर सकते हो। मैंने अगर रिस्पॉन्ड नहीं किया तो आप इमरान को कर सकते हो, है ना। क्योंकि क्या होता है हम लोगों के क्लासेस चलते हैं ना, तो कई बार हम लोग फोन रिसीव नहीं कर पाते, ठीक है। इन दैट केस यू कैन टेक्स्ट अस एंड देन वी विल कॉल यू बैक, या तो फिर आप इमरान को कॉल कर सकते हो। इमरान इज अ ओके कोऑर्डिनेटर, so you can call Imran in that case। अगर आपका कुछ क्वेश्चन है बैच से रिलेटेड या ऐसा कुछ भी क्वेरी रहेगा तो आप इमरान को कॉल कर सकते हो। इफ ही इज एबल टू आंसर यू, ही विल आंसर यू, अदरवाइज ही विल डायरेक्ट
यू टू अस, हमारे पास आपको वो ये करेंगे, तो आप व्हाट्सएप पे पिंग करो और फिर हम आपको आंसर करेंगे, ठीक है? Okay. ऑलराइट, Okay. चलो देन वी विल स्टॉप द सेशन हियर देन, सी यू नेक्स्ट वीक, Yes. बाय Thank बाय you. एवरीवन, Bye. Thank you. Bye bye. Thank you. बाय।